Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। For our meditation, shall we turn to the book of 1 Samuel chapter 2 verse 8. आज के ध्यान के लिए पहला शामुएल अध्याय 2 वचन 8 की ओर देखेंगे। वे कंगाल को धूलि में से उठाता और दरिद्र को घुरे में से निकालकर खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए, क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है। He raiseth up the poor out of the dust and lifteth up the beggar from the dunghill, to set them among princes and to make them inherit the throne of glory. For the pillars of the earth are the Lord's, and he hath set the world upon them. Glory be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। Here we see, in some places it is mentioned as prayer of Anna, but it's not a prayer, it is a song of Anna. कुछ जगह में इस वचनों को जो हमने पढ़ा है ऐसा उल्लेख किया गया है कि ये हन्ना का प्रार्थना है। ये हन्ना का प्रार्थना नहीं, ये हन्ना का गीत है। The word of God is full of songs. परमेश्वर का वचन गीतों से भरा हुआ है। We all like to hear songs. We all like to sing songs. हम सब गीत सुनना गाना पसंद करते हैं। Sometimes we may not have a sweet voice, कई बार हमारा गीत का कंठ मधुर नहीं होता, but the song is something a part of our life. किंतु फिर भी गीत हमारे जीवन का एक अंग है, एक भाग है। When we are not able to express our joy with our words, हमारे शब्दों से कई बार हमारे खुशी का बयान कर नहीं पाते, it goes into singing. और तब वो गीत में बदल जाता है। Some sing while they have a bath also. कुछ लोग तो नहाते नहाते भी गाते हैं। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। So then, when that is not sufficient, और जब ये भी काफी नहीं होता, then it goes into dance. तब हम आगे नाचने लगते हैं। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। So the joy of the Lord, when the Lord fills us with His joy, nobody can stop that. और जब परमेश्वर हमें आनंद से भर देता है तो कोई हमें रोक नहीं सकता। But here it is a peculiar situation in which she was singing. कि तो यहाँ पर एक बहुत ही एक अजीब और गरीब समय या परिस्थिति है जहाँ पर ये वो गीत गान कर रही है। She was barren. वो बांझ थी। God answered her prayers. प्रभु ने प्रार्थना का उत्तर दिया। Now she is giving that child for the Lord. और अभी वो अपना बच्चे परमेश्वर को सौंप रही है। And no remorse, no regrets. और उसको कोई दुख नहीं, कोई पछतावा नहीं। Oh, why did I make a covenant with the Lord like that? और क्यों मैंने परमेश्वर के साथ वाचा बांधा, इस प्रकार की बातें। Her heart is full of joy. कि तो उसका दिल आनंद से भरा है। In the Old Testament we see so many songs. पुरातन नियम में बहुत सारे गीतों को हम देखते हैं। Apart from that, the Jews Targum, that is, it's mentioned about many more songs. और ज्यूस टारगम में बहुत से अधिक और भी अन्य गीतों का उल्लेख है। The rabbis say Jews have got 10 songs, it seems. और रबी इस प्रकार कहता है कि यहूदी के 10 गीत हैं। The first song was sung by Adam when his sins were forgiven. और पहला गीत कहा जाता है कि आदम ने गाया जब उसका पाप क्षमा हुआ। The second song was sung by Moses when he came out of the land, when the Israelites came out of the land of Egypt. दूसरा गीत मूसा ने तब गाया जब वो मिस्र देश से इजरायली बाहर निकल आए। So also it goes on and on. और इस रीति से गीत बहुत सारे हैं। Song of Joshua, nothing is there in the Bible, but in other books it is there. और यहोशू का गीत हमारे धर्मशास्त्र में नहीं किंतु अन्य पुस्तकों में है। When he stopped the sun, moon, जब उसने सूर्य चंद्रमा को रोक दिया। then we see about the song of Deborah. और हम लोग देबोरा के गीत को देखते हैं। We see about the song of Hannah. This comes sixth in the line. और उसके बाद हन्ना का गीत जो हम देखते हैं वो श्रृंखला में छठा गीत है। Then the ninth song is, और नौवां गीत that is called the Songs of Solomon. और वो सुलेमान का गीत है। So then Songs of Solomon, which is there in our Bible. और सुलेमान का गीत तो धर्मशास्त्र में है। It is a glorious relationship between the bride of Christ and the church of God. और ये एक बहुत ही उस गीत में सुंदर संबंध मसीह का और उसकी दुल्हन का हम देखने पाते हैं। But the final song, they say, it is when the Israelites will be restored back to their former place,
they will be singing a song of redemption. और एक आखिरी गीत है जो इस्राएल लोग उसके पहली अवस्था में जब लौट आते हैं उस समय में उन्होंने गीत गाया. But we don't stop with that. लेकिन हम वहीं नहीं रुकते. That is where our song begins. और वहीं पर तो हमारा गीत आरंभ होता है. Songs of salvation, उद्धार का गीत, song of redemption, छुटकारे का गीत, songs which martyrs sing, और शहीदों ने जो गीत गाया वो गीत, songs which people will be inheriting, Zion would sing. और सियोन में पहुंच करके अधिकार में गाने वाला गीत. Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो. From the book of Genesis till the book of Revelation, it's full of songs and joy. उत्पत्ति की किताब से प्रकाशित तक की किताबों में पूरा गीत और आनंद भरा है. Children of God, you have come here. We are supposed to rejoice in the presence of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जो यहाँ पर आए हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित और मग्न होना है. Today my subject is not about song or dance. और आज मेरा विषय वस्तु गीत और नाच नहीं, About the three stages which the Lord has for the human being, every individual who is born in this world. इस संसार में जन्म हुए प्रत्येक मनुष्य के जीवन में दिखाई देने वाले 3 स्तरों को मैं आपके बीच में बांटना चाहूंगा. Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो. The first stage, पहला स्तर, every human being who is born in this world is filled with sin. He is a sinner. हर एक मनुष्य जो इस संसार में जन्मा है वो पाप में जन्मा है और वो पापी है. You may be very rich. वो धनी हो सकता है. You may be very rich. आप बहुत ही धनी है हो सकते हैं. You may have buildings, houses, lands and property. आपके पास मकाने हैं, इमारतें हैं, जमीन है, संपत्ति है. But at the same time, if you do not have the assurance that your sins are forgiven, किंतु उसी समय में अगर आपके अंदर ये निश्चितता नहीं कि आपकी पाप क्षमा हो गया, it may be an outsider, it may be a believer's child, it may be anyone. वो एक नया व्यक्ति यहाँ पर हो या एक विश्वासी हो या कोई भी क्यों ना हो, You must understand you are embracing the dunghill. और आप उस समय में इस बात को जान लेना चाहिए कि आप उस कूड़े को आलिंगन कर रहे हो. So then, it's a sad thing that so-called believers and so-called children of God also have gone to that bottom rung of degradation. और बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि कई विश्वासी और कई लोग जो है वो इस प्रकार के निचली स्तर पर दिखाई देते हैं. Even after accepting Christ Jesus as your personal Savior, यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत जीवन के उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बाद भी just find out where your position is. आज आप इस बात को परख के देखो कि आपकी स्थिति कहाँ है. God doesn't want you to remain in that condition. आपको उसी परिस्थिति में रखना प्रभु नहीं चाहता. God wants to raise you up from that place. परमेश्वर आपको स्थान से ऊपर उठाना चाहता है. What is the first place here? यहाँ पर पहला स्थान कौन सा है? He is in the dunghill. He is in the dust. ये यहाँ पर एक धूली में है. What does dunghill, dust, 2 places. और यहाँ पर धूरे और धूली के बारे में बताया गया है. There it is mentioned about a poor man. It's mentioned about a beggar. और यहाँ पर कंगाल के बारे में, दरिद्र के बारे में बताया है. He is in the dust. He is in the dunghill. और वो धूली में है, वो धूरे में है. But what is the purpose of God? परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? He doesn't want you to remain in that condition. परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम उसी स्थिति में रहो. He wants to lift you up and bring you and set you among princes. किंतु वो आपको वहां से उठा करके कुलीनों के साथ, राजकुमारों के साथ बिठाना चाहता है. This is where most of us are seen tonight. This is where most of us are seen tonight. आज उसी स्थान में हम में से अधिक लोग दिखाई देना चाहिए. God has delivered us from the horrible pit. और परमेश्वर हमको उस सत्यानाश के गड्ढे से बचाया. He has delivered us from the horrible pit. और उसने उसे नाश के गड्ढे से हमें उठाया. We were wallowing in mire. We were wallowing in dust and dung. हम लोग इस धूली में, इस धूरे में, हम इस दलदल के कीचड़ में फंसे हुए थे. हम लोग उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे थे. We were filled with filth and we were defiled by our own blood. हम लोग पूरे गंदगी से, अशुद्धता से, अपने ही खून से सने थे. As we read from the book of Ezekiel chapter 16. एजेकिएल की किताब उसके 16 अध्याय में जैसे हम पढ़ते हैं. So then, polluted by her own blood. वो लोग अपने ही खून से दूषित है. The loving God came in search of her. किंतु परमेश्वर उसको ढूंढ के आया. He said, live. और उसने कहा जियो. Live. जियो. That one word was sufficient. और एक शब्द काफी है. Dear child of God, you are not supposed to be in that condition. हे परमेश्वर की प्रिय संतान, तू स्थिति में रहे ये ईश्वर नहीं चाहता. From there,
this man is set among princes. और वहां से परमेश्वर उसे उठा करके उसको प्रधानों के साथ बिठाता है. That is what we say, the fellowship of the saints, the congregation of the righteous. और इसी को हम लोग संतों की सहभागिता, धर्मियों की सभा करके कहते हैं. He keeps us among princes. वो हमको प्रधानों के बीच में रखता है. All those who have come to that situation shout hallelujah. जितने भी लोग इस प्रकार की स्थिति से आए हैं उन लोग एक जोरदार हालेलुया बोले. All those who are still in the first position shout hallelujah. और जो लोग अभी भी उस पहली अवस्था में, दशा में, वो ले हालेलुया बोलिए. There are so many here in that condition now. और देखो यहाँ पर अब भी कुछ लोग इसी प्रकार की अवस्था में है. So then they are embracing the dunghill. उन लोग अभी भी उस धूरे को, उस कचड़े को आलिंगन कर रहे हैं. No, God doesn't want you to remain in that condition. परमेश्वर नहीं चाहता कि तू उस अवस्था में या स्थिति में रहे. Now you be your own judge as to where you are. आप अपने आप को ही न्याय करो, आप अपने आप के न्यायाधीश हो और देखो कि आप कहाँ हो. Remaining in the fellowship of the saints, और संतों की सहभागिता में रहना, you have to prepare yourself for that throne of glory. और आपको अपने आप को उस महिमा के सिंहासन के लिए प्रस्तुत भी करना है. None of us have attained that. और अभी तक हम में से किसी ने भी उसको पाया नहीं. But we have a glorious hope that one day I will reach there. किंतु हमारे अंदर एक महिमा में आशा है कि एक दिन उस महिमा में सिंहासन में हम जा पहुंचेंगे. Provided we remain faithful in the second stage. लेकिन उसके लिए चाहिए कि हमारी दूसरी अवस्था में हम विश्वास योग्य बने रहे. Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो. Now we'll consider the first position. अभी हम लोग इस पहली अवस्था के बारे में ध्यान करेंगे. Sometimes you may be spiritually poor. कई बार हम लोग आत्मिक अवस्था में कंगाल रहते हैं. You may be rich in this world. इस संसार में तो धनी होंगे, But at the same time you may be poor spiritually. किंतु आत्मिक दशा में कंगाल होंगे. If you have not accepted Christ Jesus as your personal Savior, प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में अगर आपने ग्रहण नहीं किया, some don't have peace, some don't have rest. कई लोगों को शांति नहीं, विश्राम नहीं, They don't know what to do. नहीं जानते कि क्या करना है. And finally it drives them to commit suicide. और आखिर में उन लोग की ऐसी दशा हो जाती है कि वे आत्महत्या करने की सोचते हैं. There was a highly educated person in the US. यूएस में, अमेरिका में एक बहुत ही उच्च अधिक पढ़ाई किया हुआ एक व्यक्ति था. Then he took up a particular course. I don't know exactly what that course was. And he did very well in that. और उसने खास प्रकार की एक शिक्षा को लिया. वो क्या शिक्षा लिया मुझे नहीं मालूम, किंतु जो भी उसने पाठ पढ़ा था वो उसने बहुत अच्छे से उसने इसको पूरा किया था. Very few had cleared that examination. और बहुत ही अल्पसंख्यक लोग हैं जो उस एग्जाम को या परीक्षा को उत्तीर्ण किया हो. On the day when that certificate was distributed to him, और जब प्रमाण पत्र दिया जा रहा था, valedictory address, और जब उसको valedictory एड्रेस के लिए बुलाया गया, so then he came to the stage, और वो मंच में आया, received that certificate from the hands of the vice chancellor, और वाइस चांसलर के हाथ से उस प्रमाण पत्र को ग्रहण किया. Before everyone he just tore it into pieces. सबके सामने उसने दो भाग में इसको फाड़ दिया. Cameras were clicking. और कैमरा छवि ले रहा था. I don't know whether videos were played during those days. मुझे नहीं मालूम कि इन दिनों में वीडियो भी कोई ले रहा होता है कि नहीं. Definitely cameras were clicking. किंतु निश्चय है कि कैमरा छवि ले रहा था. It was a glorious moment. और बहुत ही महिमा में वो समय था. He had taken enough pains to clear that exam. और उसने बहुत अधिक कष्ट उठाया था कि उस परीक्षा को वो पास करे. Very few had cleared that exam. बहुत ही अल्प लोग ही हैं जो उसमें उत्तीर्ण हुए होंगे. You know what were his words? किंतु उस व्यक्ति का क्या शब्द था? What is the use of this? I don't have peace. I don't have rest in my life. और उसने कहा, इस प्रमाण पत्र का क्या लाभ जब मेरे जीवन में शांति और विश्राम नहीं. Same thing happened to a very rich man in the US also. और इसी प्रकार उस यूएस में, अमेरिका में बहुत ही धनी व्यक्ति के साथ भी हुआ. He had accumulated enough money. उसने बहुत धन संपत्ति को संचय किया. He threw it in the streets. रास्ते में फेंक दिया. Then someone asked, why are you doing this? Are you mad? लोगों ने पूछा, तू क्यों पैसे फेंक रहा है? क्या तू पागल हो गया? You know, American money is considered, it has got value throughout the world. और उस लोगों ने कहा कि अमेरिका का जो राशि का जो मूल्य है पूरे दुनिया में मान्यता है. Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो. He said, what is the use of accumulating so much money? I don't have peace. I don't have rest. उसने कहा, इतना धन संपत्ति संग्रह करके क्या लाभ जब मुझे शांति और विश्राम नहीं. He was
rich in this world but poor in his spirituality. वो इस संसार में तो धनी था, किंतु आत्मिक जीवन में कंगाल पाया गया। Dear child of God, you must understand that your sin will drive you into poverty. लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोग, इस बात को जान लो कि तुम्हारा पाप तुम्हें कंगाल की अवस्था में खींच ले जाएगा। Your sins must be forgiven. आपकी पाप क्षमा होना चाहिए। The blood of Jesus cleanseth you from all unrighteousness. प्रभु यीशु मसीह का लहू तेरे सारी अधार्मिकता से तुझे शुद्ध कर सकता है। You may have everything in this world. इस संसार में तेरे पास सब कुछ होगा, Good family, good education, अच्छा enough bank balance, अच्छा परिवार, अच्छी शिक्षा, अच्छी रकम आपके बैंक में होगा, enough property. आपके पास बहुत संपत्ति होगा। But at the same time, if you do not have the assurance that your sins are forgiven, किंतु उसी समय में अगर आपके अंदर ये निश्चितता नहीं कि मेरे पाप क्षमा हो गया, you are a pauper in the sight of God. आप परमेश्वर की दृष्टि में एक बहुत ही निर्धन व्यक्ति हो। But cheer up, you have hope. Cheer up, you have hope. किंतु खुशी मनाओ, ढाढ़स बांधो, तुम्हारी एक आशा है। God has not brought you here to remain in that condition. आप उसी अवस्था में रहने के लिए प्रभु आपको यहाँ नहीं लाया। He wants to pull you out from that particular position. आपको उस स्थिति से बाहर खींच निकालना चाहता है। So if you confess all your sins to Jesus, अगर आपने सारे पापों को यीशु के सामने इकरार करोगे तो He came down into this world. He was appointed. He came down as a propitiation for your sin. और वो इस संसार में हमारे पापों को उठाने के लिए देखो एक प्रायश्चित बन करके आया है। So then, when you confess all your sins to Him, अगर अपने सारे पाप और गुनाहों को उस यीशु के सामने बोल देने से you need not do anything for that. आपको उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं। You need not light any candles. और आपको कोई मोमबत्ती जलाने की आवश्यकता नहीं। You need not spend any money for that. उसके लिए पैसा खर्च करने की भी जरूरत नहीं। You need not take any sacred pilgrimage for that. और उसके लिए आपको किसी तीर्थ स्थान में जाने की भी जरूरत नहीं। Someone else has paid the money for you. आपके लिए किसी और ने मूल्य चुका दिया। He has paid the cost for that. उसने उसका दाम दे दिया। When He was in this world, what did He say? और जब वो इस संसार में था तो उसने क्या कहा? Come unto me, all ye that labor and are heavy laden. हे बोझ से दबे हुए परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Whoever came to Him found rest through Jesus. और जो भी कोई उसके पास आए वे उन्होंने यीशु में विश्राम पाया। The blood of Jesus will cleanse you from all unrighteousness. तभी यीशु मसीह का लहू आपको सारी अधार्मिकता से छुटकारा देगा। There is no detergent in this world which can cleanse you of your sin. इस संसार में ऐसा कोई साबुन नहीं जो आपके पाप को धो डाले। But there is something called blood of Jesus, the blood of that Almighty God. He came down into this world in the form of man. लेकिन देखो एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो मनुष्य रूप धारण करके संसार में आया और उसका लहू हमारे सारे पापों को धो सकता है। Sin stains are lost in the life-giving flow. और जो पाप जो है वो हमारे जीवन में एक दुर्गंध और एक नाश की ओर हमें ले चलता है। So it will not remain. That stain cannot remain in you any longer. और वो दाग जो है वो आपके जीवन में बना नहीं रहेगा। All that you have to say is, Lord, I am a sinner. Forgive my sins. आपको बस केवल इतना ही करना है कि हे प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे पाप क्षमा कर। You may be a vulgar person sometimes. आप शायद तो बहुत ही बुरे व्यक्ति हो सकते हो। You know what happened this is true story from the West. और पश्चिम से एक सत्य घटना है ये। There was a lady who was living a loose life. और एक महिला थी जो एक बहुत ही बुरी जिंदगी जी रही थी। So then she was into all sins. और वो सारी पापों में लिप्त थी। She had abused her body with drugs. और उसने अपने शरीर को नशीली पदार्थों को लेने के लिए सौंप दिया। Smoking, drunkenness and every evil vice. वो धूम्रपान करती है, वो मद्यपान करती है, हर एक प्रकार के दुष्कर्म करती है। Finally, the word of God came to her. एक दिन परमेश्वर का वचन उसके पास आया। She broke down in the presence of God. परमेश्वर के सम्मुख में वो टूट पड़ी। She fell at the feet of Jesus. यीशु के कदमों में गिर पड़ी। She asked for pardon for all sins. अपने सारे पापों के लिए क्षमा याचना किया। She found rest and peace in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में उसको विश्राम और शांति मिला। The blood of Jesus cleansed her from all unrighteousness. यीशु मसीह ने अपने लहू से उसकी सारी अधार्मिकता को धो दिया। She became an active member in the church. कलीसिया में एक बहुत ही अच्छी कार्यकर्ता बन गई। She got into Sunday school. She started to teach the Sunday school children. और वो बच्चे को संडे स्कूल सिखाने लगी।
That is when the eyes of the pastor's son fell upon her. और उस समय में था कि वो पास्टर जी का जो बेटा था उसकी आंख उसके ऊपर पड़ा He was looking for a life partner. और वो अपने जीवन साथी को उस समय में ढूंढ रहा था। Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। You know what happened? पता है क्या हुआ? The whole congregation rebelled against them, and then they objected for this. सारी कलीसिया के लोग इस संबंध के लिए विरोध करके उठ खड़े हुए। This woman with such a loose character, is she fit to become pastor's wife? क्या Pastor's son's wife? क्या ये महिला जो इतना गंदे चरित्र वाली एक महिला है, क्या पास्टर जी के बेटे के योग्य वो दिखाई दे रही है? They called them for a meeting. वे लोगों ने एक सभा बुलाया। You know that there were so many others, elders, deacons and others. और वहाँ पर बहुत सारे प्राचीन थे, बड़े बड़े डिकॉन्स लोग भी वहाँ पर थे। So then they said, it is not, we don't consider it to be right for her to have, to get married to this person. और सब लोगों ने एक ही बात को कहा कि ये महिला का पास्टर जी के बेटे के साथ विवाह होना हम सबको सही नहीं लगता। The boy stood up and said, और उस समय में ये लड़का खड़ा हुआ और कहा, I would like to ask you a question. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। Does the blood cleanse or not? क्या यीशु के लहू ने आपको धोया या नहीं? Forget about her past. उसके पिछले जीवन को भूल जाओ। It is not about my fiancé that is in question now. और ये It's not the question about my fiancé. मैं जिससे शादी करने जा रहा हूँ इसके संबंध में ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा, But it is a question about the blood. Does it cleanse or not? किंतु सवाल ये है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू क्या आपको क्षमा किया है, धोया है या नहीं धोया? They all broke down. सारे लोग टूट गए They admitted their folly. और वे लोग वो दया में भर गए। Admitted their folly. वे लोग अपने गलती को मान लिए। Then afterwards marriage went on. और उसके बाद विवाह समारोह हुआ। Please be to God. प्रभु की स्तुति हो। The power of the blood of Jesus is all sufficient for you. प्रभु यीशु मसीह का लहू सब में सब कुछ है। Don't be bothered as to what others say about you. आपके संबंध में लोग क्या कहते हैं उसके विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं। But at the same time, you should not repeat the same sin over and over again. तो उसी समय में उसी पुराने पापों को बारंबार दोहराना भी नहीं चाहिए। Today you are going to, if there is anyone in that first stage, अगर कोई भी यहाँ पर पहली दशा में है तो so you come back to the Lord. यीशु के पास, प्रभु के पास लौट आओ। So there is pardon in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में क्षमा है। Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। Sometimes you may not have any sin, कई बार हमारे जीवन में कोई पाप नहीं होता है, but at the same time your health may be in poor shape. किंतु आपके शरीर का स्वास्थ्य का बुरी अवस्था होता है। Even that person is in the dust. और वो भी व्यक्ति जिसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं, वो भी धूली नहीं है। So then that is not what the Lord desires of you. और परमेश्वर आप इसी अवस्था में रहे नहीं चाहता, Because He has died not only for your sins, He has died for your sickness also. क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह आपके पापों के लिए मात्र नहीं मरा, वो आपकी बीमारियों के लिए भी क्रूस पर चढ़ा है। A child of God can fall sick, it is true. और एक तो सत्य है कि परमेश्वर का एक बच्चा बीमार पड़ सकता है, But at the same time, the blood of Jesus not only saves you from your sin, but heals all your sickness also. लेकिन उसी समय में इस बात को भी जान ले कि प्रभु यीशु मसीह का लहू न केवल आपके पाप को क्षमा कर सकता है, वो आपकी बीमारी को भी चंगा कर सकता है। We can mention so many stories about this. और इसके संबंधित कई कहानियों को मैं कह सकता हूँ। Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। In America, there was a lady who was suffering from cancer. एक महिला अमेरिका में थी जिसको कैंसर का बीमारी, कर्क का बीमारी था। She had abused her life due to drug abuse and other things before she came to Christ. मसीह में आने से पहले नशीली पदार्थों को लेने के द्वारा और अनेक प्रकार के दुष्कर्मों से अपने शरीर को दूषित कर चुकी थी। Finally, the word of God came to her. और आखिर में परमेश्वर का वचन उसके पास आया। She confessed all her sins to the Lord. उसने अपने सारे पाप को प्रभु के पास स्वीकार किया। She was baptized और उसने बपतिस्मा को लिया। and she received the baptism of the Holy Spirit also. पवित्र आत्मा का अभिषेक भी उसको मिल गया। But still she had a problem. फिर भी कुछ समस्या था, Excess of bleeding. और उसके लहू बह रहा था। She went to the doctor.
वो वैद्य के पास पहुंची, Doctor could not do anything. किंतु डॉक्टर कुछ कर ना पाए। You know what the doctor said? पता है डॉक्टर ने क्या कहा? I would like to operate you. मैं तुम्हारा ऑपरेशन करना चाहता हूँ, But at the same time, I would warn you one thing. लेकिन मैं आपको चेतावनी भी दे दूं, It may not help you. It will help someone else. और शायद मैं जब ऑपरेशन करूंगा आपको मदद नहीं मिलने से भी ऑपरेशन करने के दौरान और किसी को मदद मिल जाएगा। This is what some of the doctors are doing these days. और कुछ डॉक्टर लोग ऐसी बातों को करते हैं। But at the same time, let me remind you that we are not against medical profession. For those who do not believe in Christ, they are doing a noble work. और उसी समय में हम आपको ये भी बता दें कि जो डॉक्टर का काम करते हैं हम उसके विरोध में नहीं हैं। आप लोग जो काम कर रहे हो एक बहुत अच्छा समाज के लिए करने वाला काम है। For a person who doesn't believe in Christ, this is good. और जो मसीह को विश्वास नहीं करता उसके लिए आपका ये सेवा अच्छा है। But at the same time, there is a person called Jehovah Rapha. लेकिन उसी समय में एक ऐसा भी व्यक्तित्व है जिसको यहोवा रफा करके कहा जाता है। He is the creator of your body. और वही आपके शरीर का सृष्टि करता है। He knows what is wrong with you. आपके साथ क्या बुरा हुआ वही जानता है। He knows where your sickness lies. वो जानता है कि बीमारी आपके शरीर में कहाँ है। When he heals you, there will not be any side effects. और जब वो चंगाई करता है तो उसका कोई भी पार्श्व क्रिया नहीं होता। So therefore, I would advise our believers to put your trust in God. इसके लिए मैं विश्वासियों से यही सलाह देना चाहता हूँ कि आपका भरोसा मात्र केवल ईश्वर पर हो। By his stripes we are healed. उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। How long will you run after physicians? कब तक आप वैद्यों के पीछे दौड़ोगे? How long will you run after scanning and medicine and other treatment? कब तक आप स्कैनिंग करने के पीछे औषधि के पीछे दौड़ते रहोगे? How long will you put your trust in God instead of put your trust in princes instead of putting your trust in God? कब तक तुम प्रधानों के ऊपर भरोसा रखोगे और ईश्वर के ऊपर भरोसा ना रखोगे? You must understand one thing, we are not speaking theory. We are experiencing that in our day-to-day life. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस बात को आप लोग भली भांति जान ले कि जो सारी बातें हम सिखा रहे हैं वो केवल किताबी पाठ नहीं, हमारे जीवन का अनुभव है। 10 years back I should have died when I was serving the Lord in Dimapur. दीमापुर में मैं सेवा करने के समय में आज से तकरीबन 10 साल पहले मैं मर ही जाना था। This brother Hemraj, who was serving with me there, he is a witness for that. और ये भाई हेमराज जिसकी साक्षी आपने सुना, जो वहाँ सेवा करता है, इसका चश्मदीद गवाह है। My heart was giving up. और मेरा हृदय बंद हो रहा था। I could not carry a mug of water with my left hand. मेरे बाईं हाथ से एक कप पानी उठा नहीं पा रहा था। So then I could hardly speak. मैं बहुत ही मुश्किल से बात कर पा रहा था। So then I could not climb stairs. ना सीढ़ी पे चढ़ पाता। So there was for so many weeks I have not preached at all. मैं कितने सप्ताहों तक प्रचार ही नहीं किया। Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। But we waited on the Lord. I waited on the Lord. किंतु मैं प्रभु में बाट जोता रहा। In the middle of this, Satan also started to play games. इस सारी बातों के मध्य में शैतान भी अपना खेल खेल रहा है। You are going to die. तू मरने वाला है। You set your family in order. तू अपने सारे घर परिवारों को, घराने को ठीक ठाक कर दे। So I was buying that. और मैं I thought what he was telling was true. और मैं भी उस बात को ले रहा था, मान रहा था कि हाँ शायद ऐसे ही होने वाला है। My condition is so. मेरा अवस्था ऐसा ही। I had 2 laptops. I disposed them off. और मेरे पास 2 लैपटॉप उन दिनों में था, मैंने उसको दे दिया। I had a palm top, even that I disposed it. मेरे पास एक palm top था, मैंने उसको भी छोड़ दिया। Preparing myself for death. मैं अपने आप को उस मृत्यु के इंतजार में तैयार कर रहा था। Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। Then afterwards you must understand, during this time there will be so many false prophets also would be playing. और उस समय में आप इस बात को भी जान लेना कि बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता भी ऐसी परिस्थिति में आपके सामने आएंगे। He told me, I saw a vision. I saw that your ministry is over. You are going to die. और वे भविष्यवक्ता आकर के आपसे इस प्रकार कहेंगे, मैंने दर्शन देखा, आपका सेवा खत्म हो गया है। So it was confirmed that I am going to die. और अब मैं निश्चित हो गया कि मैं मरने वाला हूँ। And there was a workers' meeting. किंतु उसी बीच में एक सेवकों की सभा हुआ। The sister who was prophesying said, और एक बहन जो भविष्यवाणी कर रही थी कहा, Who told you that you are going to die? किसने कहा तू मरने वाला है? You won't die. तू नहीं मरेगा। Then as if a new light shine out of darkness.
आवाज को सुनने के समय में मानो अंधकार में एक नई ज्योति चमक उठी। Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। Gradually God brought me out of that. और एक ऐसा हाथ आया जो उस अवस्था से मुझे बाहर निकाल लाया। More than 10 years have passed by, I have not died. और 10 साल बीत गए, मैं नहीं मरा। God is taking me to different places. अलग अलग स्थानों में अब प्रभु मुझे ले चल रहा है। We not only preach, it is not only theory, it is what we are experiencing in our life. हम जो भी कुछ प्रचार करते हैं वो केवल किताबी पाठ नहीं, हमारे जीवन का अनुभव है। Himself took our infirmities, bare all our sins. With his stripes we are healed. उसने हमारे सारे अधर्मों को उठा लिया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। All those who are sick tonight, lift up your hands. जितने भी आज इस रात के समय में बीमार है, अपने हाथ को उठाएं। You need not be in that dunghill. आपको उसी कूड़े में, उसी धूरे में नहीं रहना। That is not the place where the Lord wants you to be. परमेश्वर नहीं चाहता कि तू उसी दशा में, उसी अवस्था में बना रहे। Why did he take all our sins on the cross? उसने हमारे सारे पाप को क्रूस में उठा लिया है। Why did he take 39 stripes on the cross? क्यों यीशु ने अपने शरीर पर 39 कोड़े का प्रहार खाया? That you may be healed of all your sicknesses. ताकि वो आपकी बीमारी से आपको संपूर्ण छुटकारा दे। In the Old Testament, they were only healed by the word of God. पुरातन नियम में उन लोग केवल परमेश्वर के वचनों के द्वारा चंगाई को पाए। So therefore, what we are trying to explain is, so then, going after physician, is it right or not? You decide. इसी के लिए जो भी कुछ हम बोल रहे हैं, हम यही केवल समझाना चाहते हैं कि आप जो इन वैद्यों के पीछे पीछे दौड़ रहे हो, ये सही है या गलत है, आप ही सोच के देखो। As Pastor was mentioning, our body must be kept by the power of God for that inheritance. और जिस प्रकार पास्टर जी कह रहे थे कि हमारा शरीर जो है उस नित्य मिरास के लिए रखा हुआ है। Your body should not be kept by the power of medicine, you must understand. आप इस बात को समझ लें कि हमारा शरीर को कुछ औषधि के द्वारा नहीं रखना चाहिए। In the Old Testament, we see in the book of 2 Chronicles chapter 16 verse 12. और दूसरा इतिहास 16 अध्याय के 12 वचन में हम लोग देखते हैं। We all know the story about King Asa. आसा राजा की कहानी हम सबको मालूम है। I'll read that to us. अपने राज्य के 39वें वर्ष में आसा का पांव का रोग हुआ और वह रोग अत्यंत बढ़ गया, तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वैद्यों ही की शरण ली। And Asa in the 39th year of his reign was diseased in his feet until his disease was exceeding great. Yet in his disease he sought not to the Lord but to the physicians. Does the word of God appreciate him? क्या परमेश्वर का वचन ये काम करने से उसको उत्साहित किया, उसकी तारीफ किया? Does it applaud him? क्या उसको ऊंचा किया? Or Asa, what you have done is very good? क्या परमेश्वर ने आसा से कहा कि आसा तूने जो ये काम किया बहुत अच्छा किया है? The Spirit of God was grieved, you must understand. हम इस बात को जान लें कि परमेश्वर की आत्मा वहां पर दुखी हुआ। Healing, so then, for a child of God, he must depend upon God for all his spiritual needs and earthly needs and physical needs also, for his healing also. एक परमेश्वर के बच्चे के लिए ये आवश्यक है कि उसके जिंदगी के सारी जरूरत, भले वो भौतिक हो, वो शारीरिक हो, वो आत्मिक हो, सारी बातों के लिए परमेश्वर के ऊपर ही मात्र निर्भर करना चाहिए। In the Old Testament, Jesus had not died. पुरातन नियम में यीशु मरा नहीं था। They were healed by the word of God. किंतु वे लोग परमेश्वर के वचन से चंगाई पाते थे। If the Spirit of God was not pleased with the Old Testament saints, अगर पुरातन नियम के संतों की इस अवस्था से परमेश्वर की आत्मा यदि प्रसन्न नहीं हुआ, but in the New Testament we have got many more things we can be healed with. और नए नियम को देखने के समय में हमारे चंगाई को पाने के लिए बहुत सारी चीजें प्रभु ने हमारे लिए उपलब्ध किया है। Jesus had not died in the Old Testament. पुरातन नियम में यीशु मरा नहीं था। There was nothing called power in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से मिलने वाली चंगाई बोल के चीज ही नहीं था। Ask in my name that your heart, your joy may be full, that you will receive whatever you ask. और मेरे नाम से मांगो, जो भी कुछ मुझसे मेरे नाम से मांगोगे, तुम्हारे जीवन में आनंद आने के लिए पिता परमेश्वर वो सारी याचनाओं को पूरा करेगा, ये वायदा भी नहीं था। Jesus had not died on the cross. Jesus had not
taken stripes on the cross. यीशु मसीह क्रूस में ना मरा और ना ही हमारे बीमारी के लिए उसने अपने पीठ पर कोड़े का प्रहार खाया था। Yes, children of God, we who are living in this dispensation, we are the most blessed ones, you must understand. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस बात को भली भांति जान ले कि हम जो इस युग में रहते हैं, सारे युगों में सबसे धन्य लोग हैं। Today you decide what you will be doing with your body. अपने शरीर के साथ आपको क्या करना है, आज ही आप निर्णय ले लो। So then will you hand over your body into the hands of physicians or in the hands of the living God? आप अपने शरीर को वैद्यों के हाथ में सौंपना चाहोगे या जीवित ईश्वर के हाथ में? By that it doesn't mean that those who take medicine, we don't say that they'll all go to hellfire. और हम इसके द्वारा ये भी नहीं कह रहे हैं कि हर कोई जो औषधि को लेता है वो नरक में जाएगा। But at the same time, we are speaking about that throne of glory. लेकिन उसी समय में एक महिमा के सिंहासन के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। We just not mention merely about heaven. हम लोग केवल स्वर्ग के बारे में नहीं कहते, We mention about New Jerusalem and Zion. हम लोग नया यरूशलेम और सिय्योन के बारे में कहते हैं। Your body must be kept by the power of God. आपका शरीर परमेश्वर के सामर्थ्य से सुरक्षित रहना The चाहिए। power of resurrection must quicken you day after day. हर दिन प्रतिदिन पुनरुत्थान की शक्ति आपको संजीवित करना चाहिए। Only then, when the trumpet sounds, you'll be resurrected. तभी जब तुर्री का शब्द होगा, उसी समय में आप उठा लिए जाओगे। If you believe in the word of God, अगर आप परमेश्वर के वचन को विश्वास करते हो, so then you ask God what you should be doing. और आप परमेश्वर के सम्मुख में पूछना चाहिए कि प्रभु तू क्या कर रहा है। But in between, let me tell you one more thing also. उसी बीच में मैं आपको और एक बात कह दूं। So then, after taking a decision that you will not take medicine, if you take medicine, is it right? अगर आप ये निर्णय ले लेते हो कि आज से मैं दवाई का सेवन ना करूंगा, और परमेश्वर के सामने ये निर्णय लेने के बाद अगर आप दोबारा मेडिसिन लेते हो, तो क्या ये सही है? Whether you take medicine or not, you will not be seen in the coming of the Lord. आप दवाई लो या ना लो, अपने निर्णय को तोड़ने से आप आगमन में नहीं जा पाओगे। But at the same time, if you have made a decision, कि उसी समय में अगर आप एक निर्णय ले लिया, you decide where you will end up. और आप इस बात को निश्चित कर ले कि आपका अंत क्या होगा। When I was serving the Lord down south, और जब मैं दक्षिण भारत में सेवा कर रहा था, praise be to God. प्रभु की स्तुति हो, So then, a person was possessed, a believer sister was possessed. और उस समय में एक विश्वासी बहन थी जो भूतग्रस्त थी। She was brought to the faith home. विश्वास भवन में उसे लाया गया, Then afterwards, so then she was acting funny. और बहुत ही अजीब और गरीब हरकतें कर रही थी। Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। So then we were praying. और हम सब उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। How did you enter into her? We asked. और हमने उस भूत से पूछा कि इस महिला के शरीर में तू कैसे प्रवेश किया? There was a railway line. और उसने कहा कि एक रेलवे पटरी है, All others were going ahead. और सब लोग आगे जा रहे थे। Because in the night they would go on, they would go for the meeting and return late in the night. और देर रात्रि में उन लोग सभा समाप्ति के बाद उन लोग उसी रास्ते वापस जाते हैं। Some places there are no lights. और वहां पर कोई ज्योति या लाइट नहीं था। So then we asked her, how did you enter into her? और हमने पूछा कि इस महिला के शरीर में तू कैसे प्रवेश किया? All others were ahead. She was alone. I took hold of her. और उस समय में ये भूत इस प्रकार कहता है, सब लोग आगे निकल गए थे, ये सबसे पीछे थी, मैंने पकड़ लिया। Why did you enter into her? I asked. फिर मैंने पूछा, फिर भी तू इसके अंदर कैसे घुसा? That devil said she was taking medicine. और उस शैतान ने, वो भूत ने कहा, क्योंकि इसके अंदर की एक दुर्बलता है, ये मेडिसिन खाती है, दवाई खाती है। I said there are so many others who are taking medicines. Why didn't you enter into them? Why did you enter into her? तो मैंने ये कहा कि ऐसे बहुत सारे हैं कि जो दवाई का सेवन करते हैं, उनमें ना घुस के इसी महिला के अंदर तू क्यों प्रवेश किया? No, she had made a decision that she will not take medicine. और उस समय में उसने कहा, नहीं, ये सबसे अलग इसलिए है क्योंकि दवाई में ना खाऊंगी का एक वायदा उसने प्रभु से किया था। Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। You see, we should be very, very careful about our spiritual lives. हमारे आत्मिक जीवन के संबंध में बहुत ही सावधान होना। You would have taken a decision about 40 years back and forgotten that. शायद 40 साल पहले निर्णय लिया होगा और अब भूल भी गए होंगे। But you must understand that there is a devil inside, because devil only told us these things. क्योंकि ये शैतान ये सारी बातों को बताया, आप भूल गए होंगे, लेकिन याद रखिएगा कि वो नहीं भूलता और शायद वो आपके अंदर भी हो। Today you may have everything but no healing.
अगर आज आपके पास सब कुछ है लेकिन चंगाई नहीं, will you make a decision in the presence of God? क्या आज परमेश्वर की उपस्थिति में आप एक निर्णय लोगे? God will never forsake you. परमेश्वर आपको कभी भी हाथ नहीं छोड़ेगा। Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। You may be financially poor, that is okay. शायद आपकी आर्थिक तंगी हो, चलता है। But you may not have a house over here. You may not have a roof above your house. शायद आपके सिर के ऊपर छत नहीं है, घर नहीं है, चलता है। But at the same time, you should not be poor spiritually. किंतु उसी समय में आत्मिक दशा में, आत्मिक स्थिति में आप कंगाल नहीं होना। Committing same sin again and again, falling in the same sin, wallowing in that blood, filth. और बार बार उसी गलती को करते हुए, उसी अवस्था में रहते हुए, अपने ही गंदगी में और अपने उस खून में आप बने रहते हो। It is a sad thing that even so-called believers say, today we'll eat, drink and tomorrow we'll die. बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज ऐसे भी कई विश्वासी हैं जो कहते हैं कि आज हम खाएंगे, पिएंगे, कल तो मरना है। A person who doesn't know about Christ may mention that thing, it is another thing. एक व्यक्ति जो मसीह को नहीं जानता अगर ये कहता है तो अलग बात है। Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। So are you poor physically, spiritually? क्या आप आत्मिक दशा में, आप शारीरिक दशा में कंगाल हो? Will you cry out unto the Lord? क्या आप प्रभु की ओर देख के दोहाई दोगे? Shall we turn to the book of Psalms 34 verse 6? आइए हम लोग भजन संहिता 34 के 6 की ओर धर्मशास्त्र खोले। This poor man cried and the Lord delivered him from all his troubles. दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। This poor man cried and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. The poor man will cry unto the Lord. You would have heard about the message of Pastor T.U. Thomas. और इस दीन व्यक्ति ने पुकारा और प्रभु ने सुना। आपने शायद पास्टर टी.यू. के उस संदेश को सुना होगा। A rich man will cry only after he goes to hellfire. धनी व्यक्ति नरक में जाने के बाद ही चिल्लाता है, But at the same time, it will be of no help to him. लेकिन उसके बाद वहां जाके चिल्लाने से उसके लिए कोई मदद नहीं मिलता। Tonight, if you are in that predicament, you are going to cry unto God. अगर आज की रात आप इस प्रकार की परिस्थिति में हो, आप प्रभु के देख को पुकारना चाहिए। Lord, I don't want to remain in this sin. हे प्रभु, मैं इस पाप में रहना नहीं चाहता। I don't want to remain in this backslidden state. हे प्रभु, मैं इस पीछे हटी हुई दशा में रहना नहीं चाहता। I don't want to be sick. I don't want to remain in this condition. मैं प्रभु बीमार और बीमारी की इस हालत में रहना नहीं चाहता। Coming back to that story of that lady in the States. और उस महिला की कहानी जो स्टेट में यूएसए में हुआ था, उसमें आने से She did not know what to do. वो नहीं जानती कि क्या करे। She went to the hospital. The doctors could not help her. और वो अस्पताल में गया लेकिन डॉक्टर ने हाथ छोड़ दिया। She came home. वो घर वापस आई। She didn't have a mother. She had a grandmother. और उसका माँ नहीं थी लेकिन उसकी एक नानी था। She was forcing her to go to the hospital. और वो उसको जोर जबरदस्त कर रही थी कि तू अस्पताल में जा। Meanwhile, she had accepted Christ. इसी बीच में उसने प्रभु को विश्वास किया, ग्रहण किया। But still, the problem persisted. फिर भी उसके शरीर में वो बीमारी है। Then afterwards, what the grandma said. और उसके बाद पता है नानी ने क्या कहा? Doctors have said there's no use even if I go there. They say that I've got cancer. और डॉक्टर ने कहा कि मैं अगर अस्पताल में जाऊं तो भी कोई लाभ नहीं क्योंकि मुझे कैंसर हो गया है। No, you should keep trying, she said. और उसकी नानी ने कहा कि नहीं, तुझे फिर भी कोशिश करते रहना है। Then she was taken to a parlor. और उसके बाद एक पार्लर में उसको ले गया गया। Where they sell coffins. और जहां पर एक मुर्दे को रखा करते हैं। So then she went there. Grandma said, one of those, you are going to die anyway. You just choose one of them. और वहां पर उस बक्से को, जहां पर कब्र का बक्सा बनाया जाता है, उसकी नानी माँ वहां पर लेकर कहा कि तू मरने वाली है, इसमें से कौन सा तुझे पसंद है तो चुन ले। You can choose one of them. उसमें से एक चुन ले। Then she told grandma, you choose one for me. उसने कहा नानी माँ तू ही चुन ले मेरे लिए। She put her trust in God. और उसने तब भी वहां भी प्रभु के ऊपर भरोसा रखा। She went back home. घर वापस लौटी। The condition was so bad. उसकी परिस्थिति बहुत ही दयनीय था। So then she lost at times in the middle of the night. She would open her eyes and she would not remember what was happening. और मध्य रात्रि वो उसका नींद टूट गया, वो उठी, उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। They said because enough oxygen was not going to her brain. और कुछ लोगों ने इस प्रकार कहा कि शायद ऑक्सीजन
अधिक मात्रा में उसके ब्रेन में या मस्तिष्क में नहीं जा रहा They है। said if it continues, sometime you lose all your memory. और कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि अगर ऐसे ही ऑक्सीजन की कमी आपके मस्तिष्क में दिखाई देगा, तेरा याददाश्त चले जाएगा। Even the slightest movement resulted in excruciating pain. और हल्का सा भी एक हिलना झुलना एक बहुत अत्यधिक दर्द लाएगा। She waited on the Lord. उसने उस स्थिति में भी प्रभु में इंतजार किया। One day in the middle of the night, एक दिन की बात है, मध्य रात्रि, she got up and saw the sheet full of blood. वो जब उठी तो देखा कि उसका बिछोना, उसका वो बेडशीट पूरा लहूलुहान है। As if someone had operated her. और ऐसा लगता है कि जैसे मानो किसी ने उसको ऑपरेशन कर दिया हो। Who has operated me, she thought. उसने सोचा किसने मेरा चीर फाड़ किया है, But still, she had pains. फिर भी उसको दर्द है। Then afterwards, she heard a voice. उसके बाद उसके पीछे एक आवाज सुनी, Arise and be healed. और उठ चंगी हो जा, Arise and be healed. उठ चंगी हो जा। Then along with that, Satan also started to speak to her. साथ ही साथ शैतान भी फुसफुसाने लगा, Don't move from there. Your condition is so bad. तेरी अवस्था बहुत ही खराब है, हिलना भी नहीं, डुलना भी नहीं। You move from that position, you'll die. अगर जिस स्थिति में तू बैठी है, अगर तू हिल डुल गई, मरेगी। But anyway, she said, if I don't get up now, I will never get up. और उस समय में उसने कहा कि अगर आज मैं ना उठी तो शायद कभी ना उठूंगी। She was sure that it was the voice of God. और उसने इस बात का निश्चितता था कि जो उठने को कहा वो ईश्वर की आवाज है। I'm going to get up, she said. और उसने कहा कि मैं उठने जा रही हूँ। She slowly put her feet on the ground. धीरे धीरे बिस्तरा से अपने पांव को नीचे उतारी, She started to walk. धीरे धीरे चलना शुरू किया। She had not walked for quite a few number of days. कई दिनों से वो चली नहीं थी। No pain at all. देखो कोई दर्द नहीं। God touched her and healed her प्रभु ने completely. उसको छुआ, उसको चंगा कर दिया। Dear brother, sister, you may be a believer, you may be a new soul. Are you sick tonight? परमेश्वर में प्रिय भाई बहन, आप एक विश्वासी होंगे या नए नए अंग आए होंगे, क्या आज की रात आपकी दशा एक बीमारी की अवस्था है क्या? Put your trust in God. प्रभु के ऊपर भरोसा रख, He'll heal you of all your sicknesses. वो आपकी सारी बीमारी से तुझे चंगा करेगा। Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। God lifts you up from that position. प्रभु आपको आपकी स्थिति से ऊपर उठाएगा। What was the problem with Hannah? हन्ना के साथ क्या समस्या था? She was barren. वो बांझ थी। She was from a very rich family, वो एक बहुत ही धनी परिवार से है, and her husband favored her. और उसका पति भी उसके तरफ है, उसको प्यार करता है, She was given the double portion, और उसने अपना सारी बातों का दोगुना उसको दिया, so that she was well looked after, और उसके पति के द्वारा अच्छा देख रेख हो रहा था। except the taunt that she had to endure from her adversary. और केवल उसके जो विरोधी की ओर से जो उसको गाली मिल रहा था, जो टॉन्ट मिल रहा था, उसके अलावा। Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। Apart from that, everything was fine. उसके अलावा सब कुछ हन्ना के जीवन में अच्छा था। God lifted her from that condition. और प्रभु ने देखो उसको उस अवस्था से ऊंचे उठाया। Sometimes that may be your condition. हो सकता है कि आपकी अवस्था भी ऐसा ही कुछ हो। Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। So God is a prayer answering. As a prayer answering God, He is in our midst tonight. हमारा परमेश्वर आज की रात के समय में देखो प्रार्थना का उत्तर देने वाला ईश्वर होकर के आया है। Where does He place you now? From that position, where does He place you? और वहां से उठा करके आपको कहाँ रखेगा? He places you with the princes, you must understand. आप इस बात को याद रखना कि आपकी उस दीन अवस्था से उठा करके आपको प्रधानों के साथ बिठाएगा। Who are those princes? ये प्रधान कौन? So that when we turn to the book of Job, chapter 15, verse 8, और जब हम लोग अय्यूब उसके 15वां अध्याय के 8 वचन को पढ़ते हैं, क्या तू परमेश्वर की सभा में बैठा सुनता था? क्या बुद्धि का ठेका तू ही ने ले रखा है? Hast thou heard the secret of the Lord, and dost thou restrain wisdom to thyself? praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। In some languages it is mentioned, do you know anything about the legislature council of God? और कुछ भाषाओं में इस प्रकार लिखा है, क्या तू ईश्वर की सभा में बैठ करके उसकी बुद्धि को सुनता था?
Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। It is a group of ministers. यहाँ पर एक झुंड के लोग हैं जो सेवकाई करते हैं। God brings you and places you among the ministers. और परमेश्वर आपको उस अवस्था से निकाल करके सेवा टहल करने वालों के बीच लाता है। So God brings you into the fellowship of the saints. परमेश्वर आपको संतों की सहभागिता में पहुंचाता है। When we turn to the book of Hebrews chapter 12 verses 22 to 24. जब इब्रानी की पत्री 12 अध्याय उसके 22 से 24 तक के वचनों को हम पढ़ते हैं। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पैलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्याय परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। But ye are come unto Mount Zion and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels, to the general assembly and church of the firstborn which are written in heaven, and to God the judge of all, and to the spirits of just men made perfect, and to Jesus the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling that speaketh better things than that of Abel. Dear children of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, this is what we call the fellowship of the saints. यही वो वचन है जिसको हम लोग संतों की सहभागिता कहते हैं। God, you should come into the fellowship of the true fellowship of saints. आप लोग सत्य संतों की सहभागिता में आना चाहिए। There is something called, there is Jesus here. यहाँ पर यीशु है, There is saints here. यहाँ पर संत लोग भी हैं, But at the same time there is a revelation about New Jerusalem and और Zion. यहाँ पर सिय्योन यरूशलेम का प्रकाशन भी है। Innumerable number of angels there. यहाँ पर लाखों लाखों स्वर्गदूत हैं, You have come out of that horrible pit and miry clay. और आप लोग इस सत्यानाश के गड्ढे से दलदल की कीचड़ से निकाले गए। Where are you now seated? और अभी आपको कहाँ पर बिठाया? Are you just wandering here and there? क्या आप इधर उधर भटक रहे हो? Have you got the true fellowship of the क्या saints? आपको संतों की सही सहभागिता मिला है? You must understand one thing. आप एक बात समझ लें, Find out as to who the true servants of God are. आप लोग इस बात को खोज निकाले कि सत्य सेवक कौन है। But by that it doesn't mean that only our assembly is the best and all others are bad. No, we don't say that. इसके द्वारा हम ये दावी नहीं कर रहे क्योंकि हमारी ही सभा सबसे उत्तम है और बाकी सारी सभा बुरा है, हम ये नहीं कह रहे। But at the same time, there may be many other better assemblies also. उसी समय में इस सभा के साथ ही साथ अन्य सभा भी उत्तम है। But at the same time, you find out which assembly God wants you to go and join with. उसी समय में आप इस बात को भी समझना है, जानना है कि परमेश्वर आपको कहाँ रखना चाहता है। As Pastor T.U. Thomas mentioned once, और एक बार जिस प्रकार पास्टर टी.यू. थॉमस ने कहा था, we don't claim to be the best of the assemblies. हम लोग सारे सभाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ करके नहीं कहते। There may be many other assemblies. बहुत सारे अन्य सभा भी होंगे, But at the same time, God planted me here, God put me in this inn, and He has asked me to remain here. लेकिन मेरा परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर ले आया, मेरा परमेश्वर ने मुझे इस सराय में रखा और मेरा परमेश्वर ने मुझे इस स्थान में रखा है। Don't try to jump from one church to another church. एक कलीसिया से दूसरे कलीसिया में कूदी मारते ना रहो। One Sunday one assembly, next Sunday another assembly. एक दिन एक कलीसिया में, दूसरे दिन दूसरे कलीसिया में। That will not nurture your faith. That will not help you to grow in your वो spiritual life. आपकी आत्मिक अवस्था में मदद नहीं करेगा, वो आपकी आत्मिक अवस्था में आपको पोषित नहीं करेगा। What is the true church of God? सत्य परमेश्वर की कलीसिया क्या? What is the condition of a child of God? एक परमेश्वर के बच्चे की अवस्था क्या? First of all, you should be washed with the precious blood of Jesus. सबसे पहले आपको चाहिए कि आप प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से धोया जाए। Second, you should obey the Lord in the waters of baptism, true water baptism. और दूसरा, आप अपने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हुए एक सही पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए। Time doesn't permit me to speak more on this subject. इन सारे विषयों को अधिक व्याख्यान करने के लिए समय अनुमति नहीं दे रहा। Thirdly, you should have received the baptism of the Holy Spirit. तीसरा, पवित्र आत्मा का अभिषेक आप पाना चाहिए। On the day of Pentecost, they all waited in the presence of God and received the baptism of the Holy Spirit with the sign of unknown tongues. पेंटिकोस्ट के दिन में वे सब लोग परमेश्वर के सम्मुख में पवित्र आत्मा पाने के लिए बाट जो है और पवित्र आत्मा आया और अन्य भाषा के चिन्ह के साथ उनमें समाया। Some say that it is demonic power.
और कुछ लोग कहते हैं कि वो शक्ति शैतानी है। Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। So it is something mentioned in the book of Joel chapter 2 verse 28. योएल की किताब दूसरा अध्याय के 28 वचन में इस बात की भविष्यवाणी है। In the last days I will pour out of my spirit upon all flesh. अंतिम दिनों में हर एक प्राणी के ऊपर मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा। If there is anyone here who has not received the Holy Spirit, क्या यहाँ पर ऐसा कोई भी बैठा है जो अभी तक पवित्र आत्मा ना पाया हो? 10 o'clock there is a tarrying meeting. Don't miss that tarrying आज की meeting. रात 10 बजे यहाँ पर एक इंतजार सभा है, उसे छोड़ के ना जाइएगा। It is a gift of God. You need not pay anything for that. वो परमेश्वर का एक दान है, उस आत्मा को पाने के लिए आपको कुछ देना नहीं है। In the last days I will pour out of the Spirit upon all flesh. अंतिम दिनों में हर एक प्राणी के ऊपर मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा। Without any respect of caste, creed and religion. किसी प्रकार के पक्षपात ना करते हुए, जाति भाषा के भेदभाव ना दिखाते हुए। Today millions around the world are receiving the Holy Spirit. आज सैकड़ों करोड़ों की संख्या में लोग अभिषेक पा रहे हैं। More than India, people from South Korea are receiving the Holy Spirit. भारत से भी अधिक साउथ कोरिया में आज अधिक लोग अभिषेक पा रहे हैं। Now many more are receiving the Holy Spirit from Brazil. और ब्राजील में भी कई लोग अभिषेक से परिपूर्ण हो रहे हैं। He is fulfilling his promise. देखो परमेश्वर अपना वचन वायदा पूरा कर रहा है। He is bringing them into the body of Christ. वे लोग परमेश्वर की या मसीह की कलीसिया में उन्हें ला रहा है। When you have the assurance that your sins are forgiven, जब आपको ये निश्चितता होगा कि आपका पाप क्षमा हो गया, when you obey the Lord in the true water baptism, जब पानी का सही बपतिस्मा आप लोगे, when you receive the baptism of the Holy Spirit, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाओगे, you will come to that state where you will be joined with that ecclesia, that is Church of God. उस समय में आप ऐसी अवस्था में आओगे जहां पर आप एक्लीसिया अर्थात कलीसिया में शामिल हो जाओगे। What is the value of that? और उसका मूल्य क्या है? When we turn to the book of Acts chapter 20 verse 28, और जब हम लोग प्रेरितों के काम 20 अध्याय के 28 को पढ़ते हैं, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. he has purchased this with his own blood. उसने अपने ही लहू से खरीद लिया। What is the price of this church? इस कलीसिया का मूल्य क्या चुकाया? As we read from the book of Ephesians chapter 5, एफिसी की पत्री 5 अध्याय में जैसा हम पढ़ते हैं, he gave his blood, he gave his life that he may present a glorious church. उसने अपना जीवन दिया, उसने अपना लहू दिया कि एक तेजोमय कलीसिया को वो प्रस्तुत करे। This is why God has brought you here tonight. इसके लिए ही आज परमेश्वर ने आपको यहाँ आज की रात लाया है। Find out as to where you are. आप अपने आप को परख के देखो कि आप कहाँ हो। Sometimes you are saved, you may be saved, you have received Holy Spirit also. आप उद्धार पाए होंगे, आप पवित्र आत्मा भी पाए होंगे, But you should come in the body of Christ. किंतु आप मसीह की शरीर में मिलना चाहिए। What is this church comprised of? और इस कलीसिया का क्या मूल्य है? Made of. और ये कलीसिया किसका बना हुआ है? It should, as we read in Ephesians chapter 2, it should have 3 stones. और इस एफिसी की किताब के दूसरे अध्याय में यहाँ पर 3 पत्थर होना चाहिए। If you read from verses 20 to 22, अगर आप 20 से आरंभ करके 22 तक पढ़ोगे, there is something called cornerstone, which is Lord and Savior Jesus Christ. आपको वहाँ पर कोने का पत्थर मिलेगा जो स्वयं प्रभु यीशु को दिखाता है। Next it is mentioned about the foundation stones, apostles and prophets. और उसके बाद इस कलीसिया में दूसरा पत्थर नींव का पत्थर जो प्रेरित और भविष्यवक्ताओं का प्रतीक है। But above that you are built as holy temple, as lively stones. और उसके ऊपर पवित्र मंदिर होते हुए जीविता पत्थर के माने आप बनना चाहिए। A church which doesn't have these 3 stones is not a church at all. अगर एक कलीसिया में ये 3 पत्थर नहीं तो वो कलीसिया ही नहीं। The foundation is Jesus. We all have that foundation. हमारा जो कोने का पत्थर है, जो नींव का पत्थर है, वो यीशु है और सबके पास ये यीशु है। But at the same time, how about that foundation stone? किंतु उस
कोने के पत्थर के ऊपर जो नींव का पत्थर है उसके संबंध में क्या? Apostles on the foundation of apostles and prophets. प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के उस नींव के ऊपर Who are these apostles? ये प्रेरित कौन? Now a group of people have risen up and they say there are no apostles at all in this 21st century. इन दिनों में 21वीं सदी में कोई प्रेरित है ही नहीं, बोलने वाले दल उभर रहे हैं। Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? Oh, lo, I am with you always, even unto the end of the world. देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तेरे संग रहूंगा। So then, did those apostles, during those 12 apostles, continue till the end of the world? तो क्या वो 12 प्रेरित जगत के अंत तक लगातार जिंदा बचे हुए हैं? They all died in the first century उन itself. लोग पहले शताब्दी में ही मर मिटे। What is the meaning of that verse? अगर ऐसा है तो यीशु का इस वचन को कहने का अर्थ क्या है? Lo, I am with you even unto the end of the world. देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। Such consecrated servants of God must remain till the coming of the Lord. प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक इस प्रेरितों के समान एक समर्पित प्रतिष्ठित सेवक होंगे रहेंगे। People who have the same consecration, एक ऐसे सेवक जो उन्हीं के समान एक प्रतिष्ठित है, same doctrine. उसी उपदेश में है। So then, upon that, this church will be built up. उसके ऊपर इस कलीसिया को गठन किया जाएगा। Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। They say, apart from 12 apostles, there are no more apostles in the Bible. लेकिन उन लोग इस प्रकार कहते हैं 12 प्रेरितों के अलावा कोई दूसरा प्रेरित है ही नहीं। St. Paul was not included in that. How come he says that I am an apostle? अगर ऐसा है तो 12 प्रेरितों में तो संत पौलुस नहीं था, फिर संत पौलुस कैसे कहता है कि मैं भी एक प्रेरित हूँ? Till the coming of the Lord, a group of people with the same consecration must rise up. परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु मसीह के आगमन तक उसी प्रेरित एक प्रतिष्ठा में एक झुंड के लोग उठेंगे। Who is this apostle? ये प्रेरित लोग कौन? First of all, he should have received the Holy Spirit. सबसे पहले प्रेरितों के अंदर सब वो अभिषेक पाया व्यक्ति होना चाहिए। Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। Second, he should be called of the Lord. दूसरा प्रेरितों का जो विशेषता है वो परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया होना चाहिए। Without a calling, a person cannot take up this honor unto इस himself. आदर के पद को बिना बुलाहट के कोई व्यक्ति पा नहीं सकता। When we turn to the book of Hebrews chapter 5 verse 4, जब इब्रानी के पत्री अध्याय 5 वचन 4 पढ़ते हैं, ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। And no man taketh this honor unto himself, but he that is called of God, as was Aaron. even as he is called of God, even as he who is called of God. और जो ईश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं। If a person has got 3 sons, एक व्यक्ति के पास अगर 3 बच्चे हैं, बेटे हैं, one boy will say, I would like to become a doctor. और वो उस 3 बेटों में एक बेटा कहेगा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, The other person will say, I would like to become an engineer. और दूसरा कहता है कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, The other person says that I'll become a pastor. और अगर तीसरा व्यक्ति कहता है कि मैं पास्टर बनना चाहता हूँ। No, first 2 things you can choose. आप पहले 2 जो चुन लिए हैं उसको चुन सकते हो, You cannot become pastor unless God calls you. किंतु तीसरा पास्टर बनने का चुनावट जब तक प्रभु ना पुकारे आप बन नहीं सकते। Jesus called James and John. यीशु मसीह ने याकूब यूहन्ना को बुलाया, Jesus called Peter and Andrew. और यीशु मसीह ने पतरस और अंद्रियास को बुलाया। Follow me, I will make you fishers of men. उसने कहा कि मेरे पीछे हो लो, मैं तुझे मनुष्य का मछुआरा बनाऊंगा। They left everything and came following Jesus. सब कुछ छोड़ दे लोग यीशु के पीछे हो लिए। God is speaking to some young boy and young girl tonight. आज की रात जवान लड़के लड़की के साथ देखो परमेश्वर बातें कर रहा है। The world is perishing. ये संसार नष्ट हो रहा है, Delhi is perishing. Delhi is perishing. दिल्ली नाश हो रहा है, India is perishing. भारत नाश हो रहा है। Who is there to carry this gospel? कौन है जो इस सुसमाचार को इस नाश होने वालों के पास ले जाए? Oh young man, young lady, you are destroying yourself.
हे जवान लड़के लड़कियां, तुम अपने ही जीवन को नष्ट कर रहे हो। You want to become great in this world. इस संसार में तू बड़ा महान बनना चाहते हो। God had given me a small job in the Ministry of Defense. और मुझे परमेश्वर ने डिफेंस में एक छोटा सा नौकरी दिया था। When the calling came, I could not remain there. किंतु जब मुझे परमेश्वर ने बुलाया, मैं उस सेना में रह नहीं पाया। I resigned my job and came out to serve God. मैं प्रभु की सेवा करने के लिए मेरे नौकरी को इस्तीफा देकर आ गया। All these days, I was not faithful, but he was always faithful. इन सारे मेरे सेवकाई की यात्रा में भले ही कितनी बातों में मैं विश्वास योग्य न होने से भी मेरा ईश्वर विश्वास योग्य है। Young man, young lady, come up, come out. हे जवान लड़के लड़कियां, बाहर सेवा के लिए निकल पड़ो। If the Lord has already called you, come out to serve God. अगर प्रभु ने आपको सेवा के लिए बुलाया है, निकल पड़ो। Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। Now what is the argument now? और अभी यहाँ पर बातचीत क्या हो रहा है? So then so many are falling. कई लोग तो गिर रहे हैं। Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। Why is that? क्यों ऐसा? As long as you are in the hands of God, you will never fall. आप जब तक परमेश्वर के हाथ में रहोगे नहीं गिरोगे। Out of 12 disciples, one person fell. It is true. ये तो सत्य है कि यीशु के 12 में से एक गिर गया। One person will fall. It is true. ये तो सत्य है, एक गिर सकता है। From the beginning, he was a thief. वो पहले से ही चोर था। Such people, God cannot do anything with them. ऐसे लोगों के साथ प्रभु कुछ नहीं कर सकता। But how about the other 11 persons? किंतु बाकी 11 के विषय में क्या? Instead of looking at the 11, why are you looking at that one तुम person? 11 को ना देख करके उस एक को क्यों देखते हो? So in that ratio, people can fall even today also. In that ratio. उसी अनुपात में आज भी एक अनुपात में गिर सकता है। Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। If it is 1 out of 12, अगर 12 में एक, it may be 10 out of 120. 120 में 10 हो सकता है। Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। People can fall. लोग गिर सकते हैं। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति When हो। you learn to remain in the hands of God. किंतु अगर आप परमेश्वर के हाथ में बने रहोगे, Oh, children of God, what are you going to do with your children? अपने हे परमेश्वर के लोगों, आपके संतान के संबंध में आप क्या सोच रहे हो? Parents, what will you do with your children? आप हे माता पिता, अपने बच्चों के साथ आप क्या करोगे? So very soon the world will come crashing down. बहुत ही शीघ्र ये जगत नाश होने वाला है। Everyone cannot do this ministry. हर कोई ये सेवा नहीं कर सकता। But in spite of receiving the calling from God, some are turning their backs. कई लोग परमेश्वर की उस बुलाहट को पाने के बजाय पीठ दिखा के निकल पड़ रहे हैं। My child must go abroad and study. मेरा बच्चा विदेश में जाके पढ़ना चाहिए। Let them go there and then come up in their life. और उन लोग अपने जीवन में अच्छा प्रगति करना चाहिए। But at the same time, who's there to take this gospel to किंतु उसी समय the fallen race? किंतु उसी समय में परमेश्वर के प्रिय लोगों, कौन इस नाश होने वाले लोगों के पास जाकर के सुसमाचार सुनाएगा? इसके बारे में सोचो। If there is any person who is called of the Lord, come out to serve God. अगर यहाँ पर ऐसा कोई भी है जिसको परमेश्वर ने बुलाया है, निकल पड़ो, सेवा करो। Third thing is, तीसरा, we should be consecrated. ये प्रेरित लोग जो है एक प्रतिष्ठित होना चाहिए। Word of God speaks about this consecration. परमेश्वर का वचन प्रतिष्ठा के संबंध में बातें करता है। Jesus speaks about this consecration. यीशु मसीह आप इस समर्पण प्रतिष्ठा के बारे में कहता है। When we turn to the book of Matthew chapter 19 verses 11 and 12. मत्ती लिखित सुसमाचार के 19वां अध्याय 11-12 वचन को पढ़ने से We are speaking about this congregation. We are speaking about being with the princes. और हम लोग उस सभा के बारे में बातें कर रहे हैं जो सभा प्रधानों के साथ है। In that group, there are two groups. उस दल में दो झुंड है। In the princes, there are two groups. उस प्रधानों के साथ दो दल है। One is wholly consecrated servants of God. एक संपूर्ण समर्पित प्रतिष्ठित सेवक लोग। On the other hand, believers who are perfected by their ministry and doctrine. और एक दूसरा दल इन प्रतिष्ठित सेवकों के उपदेश के द्वारा, सेवा के द्वारा सिद्धता को प्राप्त करते हुए उन्नति पाते हैं। You should be seen in either of these groups. आप इन दोनों में किसी एक दल में होना चाहिए। But you should find out as to which group you should belong to. तो आप इस बात को ढूंढ के निकाले कि आप कौन सी झुंड में हो अभी। Kindly read that verse, Matthew chapter 19 verses 11 and 12. मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 11-12 वचन को पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, सब ये वचन ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वे जिनके ये दाम दिया गया है, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे
और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। जो इसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे। But he said unto them, all men cannot receive this saying, save they to whom it is given. For there are some eunuchs which were so born from their mother's womb, and there are some eunuchs which were made eunuchs of men, and there be eunuchs which have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sake. He that is able to receive it, let him receive it. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। Jesus makes mention of this. और यीशु मसीह ने इसका उल्लेख किया। When Peter says, who can live such a life? पतरस ने पूछा, ऐसा जीवन कौन जी सकता है? Yes, everyone will not be able to accept this. हाँ, इस शक्ति को हर कोई ग्रहण नहीं कर सकता। But only such of those who are called for this, who have received this as a gift. In some language it is mentioned, who has received it as a gift. और कुछ भाषा में इस प्रकार लिखा है, ये सत्य को वही लोग ग्रहण कर सकते हैं जिसको जो इस प्रकार के दान पाए गए हैं या जिनको परमेश्वर ने बुलाया है। The word of God makes mention about 3 kinds of eunuchs. परमेश्वर के वचन में 3 प्रकार के नपुंसक बताए गए। Delhi doesn't lack the first group. और दिल्ली के लोग इस पहले नपुंसक के दल को पसंद नहीं करते। They don't lack. और You can see दिल्ली में them. इसका कमी नहीं है। You can see them in the traffic signal and other places. आप लोग उस चौरास्ते में जहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल होता है, इस पहले नपुंसक के दलों को देख सकते हो। वो लोग ऐसे ताली बजाते हैं, छूते हैं। They are neither male nor female. ना तो वो स्त्री है ना पुरुष। Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। Due to some hormonal change or whatever it is, so they are neither male nor female. उनके शारीरिक गठन में ऐसा कुछ हुआ कि ना तो स्त्री रह पाए ना पुरुष हो पाए। There is a second group. और एक दूसरा झुंड है। They were born as men in वो this लोग world पुरुष होकर के जन्म तो लिए थे, during the time of the Persian rule. लेकिन जब पारसी राज्य चल रहा था, They were made eunuchs and placed in the palace. उन लोगों ने इस प्रकार के पुरुषों को लिया, नपुंसक बनाया, राजमहल में रखा। Nobody could go to the presence of the king without being made a eunuch. एक राजा के पास एक मनुष्य तब तक नहीं जा सकता जब तक उसे नपुंसक ना बनाया हो। You would have listened to the messages of Pastor Don. आप पास्टर डॉन के मैसेज शायद सुने होंगे। Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, they were all made eunuchs and they were placed in the palace. दानियल, शद्रक, मेशक, अबिदनगो को नपुंसक बना करके राजमहल में रखा गया था। That is the second group of eunuchs. और ये उस नपुंसक की दूसरा दल है। But there is a third group of eunuchs. लेकिन एक तीसरा नपुंसक का दल भी है। They are born as men and women in this वे world. लोग इस संसार में स्त्री पुरुष होके जन्म लिए। What do they say? और क्या कहते हैं वे? For the sake of the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के लिए। For the sake of, you see, there are so many people to pursue their scientific advancement for their, they say that I don't want marriage. और कई लोग कई प्रकार के कारणों को कहते हुए कहते हैं कि हमको विवाह करना ही नहीं है। For the sake of profession. और उनके काम के खातिर कुछ कहते हैं। Mr. Abdul Kalam did not get married. मिस्टर अब्दुल कलाम विवाह नहीं किए। Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। For the sake of, due to other reasons, they said we don't want to live such a life. अन्य कारणों के कारण वो लोग बोलते हैं, वो चाहते हैं कि मुझे विवाहित जीवन नहीं चाहिए। For me, my profession comes first. मेरा काम मेरे आगे है। For me, my nation comes first. मेरे लिए मेरा देश मेरे लिए आगे है। Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। So also, if a person can do that for the earthly pursuits, अगर इस संसार की बातों को पाने के लिए, उस मुकाम में पहुंचने के लिए, अगर एक इंसान ऐसे जीवन जी सकता है, why shouldn't a person not do this for the sake of the kingdom of God? तो एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के लिए नपुंसक का जीवन क्यों नहीं जी सकता? Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। The Lord will fill you with such an anointing that you lose interest in all such things. और परमेश्वर ऐसे आग्रह करने वालों को इस प्रकार के अभिषेक देगा कि आपको इस प्रकार एक वैवाहिक जीवन जीने के लिए आग्रह ही ना होगा। If the Lord calls you for that, He will give you grace also for that. अगर परमेश्वर इस प्रकार के जीवन के लिए बुलाता है तो वो आपको अनुग्रह भी देगा। It is they who will be able to perfect the church of God. और इस प्रकार के लोगों के द्वारा ही कलीसिया सिद्ध होता है। Such people, it's only such people
that would attend upon God's work without any distraction. और वे लोग ऐसे लोग हैं जो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी परेशानी के परमेश्वर की सेवा को निरंतर लगातार कर सकते हैं. The word of God is resounding even today. आज भी परमेश्वर की आवाज देखो गूंज रहा है. As you heard, as it was mentioned hundreds of years back, और ये वचन जो है 100 साल पहले कहा गया था. who will go for us? कौन मेरे लिए जाएगा? Who will go for us? कौन हमारे लिए जाएगा? India is perishing. देखो भारत नाश हो रहा है. Our world is perishing. ये संसार विनाश हो रहा है. Very little time left. अभी थोड़ा ही समय बाकी रह गया. You young man, young lady, what are you going to do with your life? हे जवान लड़के लड़कियां, अपने जीवन से तुम क्या करोगे? Did you hearken to the voice of God? क्या आप प्रभु की आवाज की ओर कान लगाओगे? Did you find out as to what His will is concerning you? आपके जीवन के प्रति उसकी इच्छा क्या है? क्या आप ढूंढोगे? Such people can perfect the church of God. वे लोग ही या इस प्रकार के लोग ही कलीसिया को सिद्धता में ला सकते हैं. These days God is looking for such men and women. इस प्रकार के लोगों को आज प्रभु स्त्री और पुरुष में ढूंढ रहा है. Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो. So then Christ is the head of this church. और कलीसिया इस यीशु मसीह इस कलीसिया का शिरोमणि है. So every individual who has received the Holy Spirit are the members of the body of Christ. और जितने भी लोग, जितने भी विश्वासी पवित्र आत्मा का अभिषेक पाते हैं, इस कलीसिया के शरीर के अंग हैं. Christ is the head and He nourishes and cherishes the church of God. यीशु मसीह कलीसिया का शिरोमणि है और वो शिरोमणि रहते हुए इस कलीसिया का पालन पोषण करता है. When you receive the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा का अभिषेक पाते हो, you are a babe. आप एक शिशु हो. But at the same time, उसी समय you should grow up to the measure of the stature of the fullness of Christ. उसी समय आपको चाहिए कि आप मसीह यीशु के उसी देल और डौल में बढ़ते जाना है. As we see in the book of Ephesians chapter 4 verses 11 to 13. और एफिसी की किताब अध्याय 4 वचन 11 से लेकर के 13 तक के वचन में हम इस बात को देखते हैं. पुष्पदत्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए. And He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, Perfecting of the saints. संत पवित्र लोगों को सिद्ध करने के निमित्त. When a person receives the Holy Spirit, और जब एक व्यक्ति अभिषेक पाता है, he's like a baby. वो मसीह में एक शिशु है. He's a man child, वो एक पुरुष संतान है. but at the same time, उसी समय all members are intact, और उसका जो सारा शरीर जो है वो छोटा है. but at the same time, it has not grown to the fullest. और वो अभी मसीह के उस ढील डोल में बड़ा नहीं है. So you need someone to train you, to teach you, and to nurture you in this faith. और उस समय में आप जो शिशु हो, कोई आपको चाहिए जो आपको परमेश्वर के उपदेश को सिखा के आपका लालन पोषण करे, That you may be perfect in Christ Jesus. ताकि आप उसमें बढ़ते हुए यीशु की समानता में आ जाओ. Unless you are perfect in all the characteristics of Christ, यीशु मसीह के उस सारे स्वभाव में जब तक हम सिद्ध न हो जाते, you will not be raptured in the coming of the Lord. यीशु मसीह के आगमन में हम उठा लिए नहीं जा सकते. I think even Sunday school children study about these things. इन सारी बातों को तो हमारे संडे स्कूल के बच्चे भी पढ़ रहे हैं. So praise be to God. प्रभु की स्तुति हो. So where is your fellowship? Have you come to the congregation of the saints? क्या आपकी संगति कहाँ है? आप संतों की सहभागिता में आए हो क्या? Or are you just running without any aim, one day here, one day elsewhere? या आप बिना लक्ष्य निशाने के इधर उधर भटक रहे हो, आज इधर तो कल उधर? God has got a special purpose concerning you. आपके जीवन के प्रति परमेश्वर के खास उद्देश्य है. Sometimes you would have come here for the first time. शायद आप पहली बार यहाँ आए होंगे. God has brought you here. You have not come here by chance. God has brought you here. प्रभु आपको यहाँ लाया है, आप अकस्मात यहाँ नहीं आए हो. So then, what is the first stage? यहाँ पर पहला अवस्था क्या? Dunghill and dust. यहाँ पर धूली और ये कूड़ा या धूली. Dust means what can I eat? What will I drink? Where will I be?
shall I be clothed with? और ये धूली का अवस्था एक ऐसी अवस्था जहाँ पर लोगों का चिंता रहता है, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा, कहाँ रहूंगा, Only worried about earthly things. केवल पार्थिव बातों की चिंता। But if the Lord calls you tonight, what will you do? किंतु अगर आज प्रभु आपको बुलाता है तो आप क्या करोगे? What are you doing with your life? आपके जीवन से आप क्या कर रहे हो? Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। You are not supposed to continue in this condition. इसी स्थिति में रहना प्रभु नहीं चाहता। He has given His life that you may come out of it. आपके लिए प्रभु ने इसके लिए जीवन दिया कि उस दशा से तू बाहर आ जाए। Even now He is extending His hand towards you. आज भी अभी भी वो अपना हाथ तुम्हारी ओर बढ़ा रहा है। Son, daughter, don't go in this path. हे मेरे बेटी, हे मेरे बेटे, इसी अवस्था में तू लौट के ना जा। I died for you. मैं तेरे लिए मरा हूँ। I've given my last drop of blood for you. मैं तेरे लिए अपने खून की आखिरी बूंद बहाया। How long will you run after the worldly things? कब तक तू इस संसार की बातों के पीछे दौड़ेगा? How long will you run after the pleasures of this इस world? संसार के सुख विलास के पीछे कब तक दौड़ेगी? Sometimes after running properly, you would have again gone back to the first state. और उसके पीछे दौड़ते हुए शायद तुम लोग पहले की अवस्था में चले गए होंगे। Situations would have forced you into that. शायद परिस्थिति ने आपको दबाया होगा, आप चले गए होंगे। But at the same time, God is giving you one more chance. किंतु उसी समय में परमेश्वर एक और मौका आपको दे रहा है। Come back to the Lord. प्रभु के पास लौट आओ। Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। The ox knoweth its owner. और बैल अपने मालिक को जानता है। The ass his master's crib. और जो गधा जो है वो अपने स्वामी की चरनी को जानता है। Come back to that crib. उसी प्रकार तुम उस चरनी में लौट आओ। You know, you have tasted who God is. आपने इस बात को पहले चखा है, प्रभु कौन है? Have you got peace? Have you got rest in your heart? आपके हृदय में शांति, आपको विश्राम मिला था। So then come back to this position. लेकिन अब आप खो दिए, इस बात में लौट आओ। He'll once again place you among the princes. एक और बार परमेश्वर आपको प्रधानों के मध्य रखना चाहता है। You should be nurtured in that faith, उस विश्वास में वो आपको पोषित करना चाहता है। in all the doctrines of Christ, तो मसीह के सारे उपदेशों से, that you may become perfect in Christ ताकि Jesus. अब मसीह यीशु में सिद्ध होकर के दिखाई दो। From there, you should await the glorious throne. और वहां से आप यीशु मसीह के महिमा में सिंहासन का इंतजार करना चाहिए। He that overcometh will receive everything it is mentioned. वचन कहता है कि जो जय पाएगा उसे ये सब कुछ मिलेगा। Word of God makes mention of this throne of glory. और परमेश्वर का वचन महिमा के सिंहासन के बारे में कहता है। When we turn to the book of Matthew chapter 19 verse 28. और मत्ती के सुसमाचार 19वें अध्याय के 28 वचन को पढ़ने से, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। And Jesus said unto them, Verily I say unto you, that ye which have followed me in the regeneration, when the Son of Man shall sit in the throne of his glory, ye also shall sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. Also read 25:31, Matthew. और उसी के साथ 25वें अध्याय के 31 वचन को भी पढ़ेंगे। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वे अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। His Lord said unto him, 25:31. अध्याय 25 वचन 31। His Lord said unto him, Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। So here we read about the throne of glory. यहाँ पर महिमा के सिंहासन के संबंध में पढ़ते हैं। You will also go there to the throne of glory. आप भी उस महिमा के सिंहासन में पहुंचोगे। See what a contrast. और देखो Difference. You देखो are कितना a person who's, this is the plan which God has for mankind. देखो कितना भिन्नता है। ये एक जो धूली में पड़ा है वर्तमान महिमा के सिंहासन में पहुंचेगा, यही परमेश्वर की योजना है। The person who was embracing the dunghill, एक मनुष्य जो इस कूड़े कचड़े को आलिंगन करके रखा था, he washes him, उसको वो धोता है and then he calls him, और उसको
calls him, उसको बुलाता है he revives him, और उसको जिलाता है, transforms his life, उसके जीवन को रूपांतरित करता है places him on the throne of glory. और महिमा के सिंहासन में जा बिठाता है। Many of us have come to the second stage. कई लोग इस दूसरी दशा में आए होंगे From here we should not lose our perspective. और हम वहां से हमारे उस दर्शन को खोना नहीं चाहिए। Our eyes must be on the throne of God. हमारी आंखें परमेश्वर के सिंहासन की ओर लगे रहना। Many things may come to distract our हमारे attention. जीवन को भटकाने के लिए कई चीज आएगा। Many things. So Satan will bring many things across our life. हमारे जीवन में कई चीजों को शैतान लाएगा, The trumpets will sound किंतु तुर्री फूका जाएगा and we shall be और transformed. हम रूपांतरित हो जाएंगे। Shall we all stand up आइए for हम some सब खड़े time? हो जाएं। Shall we all stand up? हम लोग सब खड़े हो जाएं। What a glorious doctrine God has given us. देखो कितना सुंदर उपदेश जो परमेश्वर ने हमें दिया What है। a glorious hope the Lord has given us. परमेश्वर ने कितना महिमा में एक आशा हमको दिया है। Sometimes we were despised by others. कई बार हम दूसरों के द्वारा तुच्छीकरण होते हैं, But at the same time, you must understand God has a special plan concerning you and लेकिन me. इसी समय में आप इस बात को जान लो, आपके विषय में, मेरे विषय में परमेश्वर का एक सनातन उद्देश्य है। Whatever little sacrifice we do, it's not worth this. और जो भी कुछ इस संसार में छोटी छोटी बातों का त्याग हम करते हैं, वो इसके सामने कुछ भी नहीं। We are only forsaking few things. हम Which, लोग केवल छोटी छोटी थोड़ी सी बातों को ही छोड़ते हैं। compared to the throne of glory, what is it? लेकिन जब परमेश्वर की इस महिमा के सिंहासन के साथ तुलना करके देखने से हमने जो छोड़ा वो कुछ नहीं है। Sometimes we may have to forsake worldly pleasures, earthly pleasures. कई बार हमें हमारे जीवन में उस स्वर्ग सिंहासन के लिए इस संसार के सुख विलास और आनंद को छोड़ना पड़ता है। And pleasures of this world and the passions of this world. इस संसार और संसार की अभिलाषाओं को, But at the same time, that eternal throne of glory which awaits us. लेकिन उसी समय में याद रखो हमारे लिए एक महिमा में सिंहासन इंतजार कर रहा है। A child of God saw a vision. एक परमेश्वर के बच्चे का यही दर्शन होना। There is lot of activity going on in heaven, it seems. स्वर्ग में बहुत सारा कार्य चल रहा है। Angels were running here and there. देखो स्वर्गदूत यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं। When this particular sister asked her, और एक खास बहन ने जब दर्शन देखा तो पूछा, so why are you running here and there? हे स्वर्गदूतों, काहे को इधर उधर दौड़ रहे हो? You know, the angel of God said, तो पता है उस स्वर्गदूत ने क्या उत्तर दिया? do you know that the whole heaven is preparing to receive you? क्या आपको नहीं मालूम कि पूरा स्वर्ग तुझे ग्रहण करने के लिए तैयारी में लगा हुआ है? We are better than Abraham, Isaac and Jacob. हम लोग अब्राहम, इसहाक और याकूब से भी बेहतर हैं। We are better than Job, Samuel and Daniel. और हम लोग अय्यूब और शामुएल और दानियल से भी बेहतर है। We are better even than John the Baptist, whom Jesus considers as the greatest among the Old Testament saints. और पुरातन नियम के सारे संतों के बीच में जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्त्रियों में जन्मे में सारे लोगों में यूहन्ना सबसे बड़ा है, हम लोग उससे भी बड़े हैं। You are children of God, you must understand that we'll be attaining that glorious throne, glorious परमेश्वर के throne. प्रिय लोगों, इस बात को याद रखना कि हम लोग जो पाने जा रहे हैं वो एक महिमा में सिंहासन है। Abraham doesn't have that throne, उसको अब्राहम को ये सिंहासन नहीं मिलेगा, but you will be seated along with Jesus on his किंतु right आप hand. परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के साथ उसी सिंहासन में विराजमान करोगे। What a glorious day awaits with the church of God. देखो कितना महिमा में वो दिन है जो ये कलीसिया देखने वाला है। By the grace of God, परमेश्वर के अनुग्रह से, by faith, let me tell you, मैं विश्वास से एक बात कह दूं, as St. Paul says, I believe, therefore I speak. और मैं संत पौलुस की बात को विश्वास करता हूं इसके लिए कहता हूं। St. Paul says, I believe, therefore I speak. और मैं पौलुस कहता है कि मैं विश्वास करता हूं इसके लिए कहता हूं। So therefore, I believe that not a single person here present will be lost in the coming of the Lord. उसी प्रकार मैं भी कहता हूं कि यहाँ पर दिखाई देने वाले में से कोई एक भी यीशु की आगमन में हाथ छोड़ दिया नहीं जाना चाहिए। Shall we close our eyes? Shall आइए we अपनी close our आंखों को eyes? बंद करें। Our God is in our midst. हमारा प्रभु परमेश्वर हमारे बीच है। The glorious throne awaits us. हमारे लिए एक महिमा में सिंहासन इंतजार कर रहा है। Come out of the garbage. हम लोग उस कूड़े कचरे से बाहर निकल आए। It is enough that we have wallowed in that. अभी हम लोग उसी
उसी में लोटपोट हो रहे थे, काफी है। It is enough. Lord, I don't want that. हे प्रभु, बहुत हुआ, मुझे ये कचरा नहीं चाहिए। But at the same time, devil will whisper in your लेकिन ears. उसी समय में आपके कान में शैतान फुसफुसाएगा, No, you will not give up. हे तू इसको छोड़ना नहीं, No, you cannot give up. तू छोड़ नहीं सकता। You have tried on so many तूने occasions. कई बार कोशिश किया था, But at the same, you will not be able to give them up. लेकिन कभी भी तू छोड़ नहीं पाया। I won't allow you to give them up. मैं तुझे छोड़ने नहीं दूंगा। But at the same time, you should understand one लेकिन thing. उसी समय में एक बात को याद रखो, The power of God is all sufficient for us. हमारे लिए परमेश्वर का सामर्थ काफी है। The calling with which God has called you is enough for us. जो प्रभु ने हमको बुलाया, उसकी बुलाहट हमारे लिए काफी है। Just obey the voice of God. केवल 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 उसकी बात की आज्ञा मानो। Every day remain in the hands of God. हर दिन परमेश्वर के हाथ में बने रहो। Continue your disciplined Christian life. आप एक अनुशासित मसीही जीवन जियो। Don't miss your morning praisings. आप सुबह की स्तुति प्रार्थना ना छोड़ो। Don't miss your family prayers. आपके पारिवारिक प्रार्थना को ना छोड़ो। Don't miss your secret prayers. आपके व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन ना छोड़ो। You will never be left behind in the coming of the अगर Lord. आप ऐसा करोगे तो कभी भी हाथ छोड़ा नहीं जाओगे। The trumpet will sound. देखो, तुर्री फूका जाएगा, The trumpet will sound. तुर्री फूका जाएगा, We shall be transformed. हम बदल जाएंगे। We are going to make this confession now. और आइए हम इस बात को स्वीकार करें, By the grace of God, प्रभु के अनुग्रह से the trumpet will sound. जब तुर्री फूका जाएगा, By the grace of God, प्रभु के अनुग्रह से I will be transformed. मैं बदल जाऊंगा। Will you make that confession? आइए इस स्वीकार के साथ So that will you make that confession? हम इस स्वीकार को करें Let God hear your confession. और आपके स्वीकार को प्रभु सुनने दी। Let devil also hear your confession. शैतान भी आपके स्वीकार सुन ले। You must understand, demonic powers are trembling today. आज शैतानी शक्ति आपको देख करके कांप रहा है। All these filthy powers are departed, running away from this सारे place. गंदी शक्तियां इस स्थान को छोड़ के भाग रहा है। Powers of backsliding are departing from this सारे place. पीछे हटने वाली शक्तियां, वो सारी दुष्ट आत्माएं भाग रही है। Power of worldliness and covetousness is departing from इस this place. संसार की सारी आशा अभिलाषा लोभ की बातें आपको देख के भाग रहा है। They cannot stand before the power of God. परमेश्वर के शक्ति के सामने ये सारी दुष्ट शक्ति खड़ा रह नहीं सकता। All that you have to do is be filled with the power of God. आपको केवल इतना करना है कि आप अपने आप को परमेश्वर के सामर्थ्य से भर दो। Don't doubt the word of God. परमेश्वर के वचन को संदेह न कर। He will never forsake you. वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, He will never forsake you. वो आपको कभी नहीं त्यागेगा। He says, I have taken you by your hand. वो कहता है कि मैंने तुझे मेरा हाथ में पकड़ लिया है। Close your eyes. Close your अपने eyes. आंखों को बंद रखो, Don't open your eyes अपने now. आंखें ना खोलो, Let the power of God come upon you. शक्ति आने दे। यीशु साथी है मेरे अपने में, अकेला नहीं कभी मैं। यीशु साथी है मेरे अपने में, अकेला नहीं कभी मैं। मेरा बुलाने वाला सच्चा निशानी तक पहुंचाएगा। मेरा बुलाने वाला सच्चा निशानी तक पहुंचाएगा। यीशु साथी है मेरे अपने अकेला नहीं कभी मैं। यीशु साथी है मेरे अपने अकेला नहीं कभी मैं। मेरा बुलाने वाला है सच्चा निशाने तक पहुंचाएगा। मेरा बुलाने वाला है सच्चा निशाने तक पहुंचाएगा। स्वदेश मेरा पिता ने देखा निवास स्वदेश मेरा पिता ने देखा निवास। अंत तक बीमारी को वफादार सच्चा काम के पाओगे। अंत
Antite Granarito, Bangada Sita, Republic Parade. Antite Granarito, Bangada Sita, Republic Parade. Dehi Ati Parade, Alkila Vineti Parade. Krishna Kanti Meri Ati Parade, Alkila Vineti Parade. Mera बुलाने वाला है सच्चा, निशानी तक पहुंचाएगा. मेरा बुलाने वाला है सच्चा, निशानी तक पहुंचाएगा. यीशु साथी मेरी अपनी गाड़ी में, अकेला नहीं कभी. यीशु साथी मेरी अपनी गाड़ी में, अकेला नहीं कभी. मेरा बुलाने वाला है सच्चा, निशानी तक पहुंचाएगा. मेरा बुलाने वाला है सच्चा, निशानी तक पहुंचाएगा. Let an anointing fall upon us. आपके ऊपर एक अभिषेक उतर रहा है. Let an anointing fall upon us. वो हमारे ऊपर अभिषेक गिरने दे. God is establishing you. वो आकर के आपको स्थिर करेगा. All these days you were staggering. अभी तक आप लड़खड़ा रहे थे, You were not steady. आप स्थिर नहीं थे. The anointing will establish लेकिन you. जब अभिषेक आएगा वो आपको स्थिर करेगा. The power of God will do things which you were not able to do. आप जो कभी कर नहीं पा रहे थे वो काम, वैसा काम पवित्र आत्मा आपके अंदर करेगा. You said, I cannot. आपने कहा कि मुझसे नहीं होता, But the power of God said, लेकिन भविष्य की आत्मा उतरने दे. not by might, not by power, but by my spirit. न तो बल से न शक्ति से, किंतु मेरे आत्मा के द्वारा. Allow the Spirit of God to work in your mortal आपके body. जीवन में आत्मा काम करने के लिए जगह दो. Clap your hands and get filled with the Spirit. ताली बजाओ, ताली बजा बजा की आत्मा में भर जाओ. Clap your hands and speak in tongues. अन्य अन्य भाषा में बातें करो. One spark of that holy fire is enough. एक परमेश्वर की महिमा की शक्ति का अंश काफी है. One spark of that holy fire. उस पवित्र आग का एक भाग काफी है. Spark, S-P-A-R-K. उसकी चिंगारी काफी है. One spark is enough. एक चिंगारी काफी है. Hallelujah, 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 hallelujah. Along with that, उसके साथ God is healing you of all your sickness. आपकी सारी बीमारी से परमेश्वर आपको देखो चंगाई दे रहा है. He is delivering you from demonic oppression. सारे शैतानी दबाव से वो आपको देखो छुड़ा रहा है. Some say oppression, some say depression. कई लोग कहते हैं कि ये दबाव है, कई लोग कहते हैं ये निराशा है. Nothing can stand before the power of God. लेकिन परमेश्वर के सामर्थ के सामने, परमेश्वर के शक्ति के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता. In the name of Jesus. यीशु के नाम से. In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से. In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से. Hallelujah, 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 hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. There is a hand that is stretched forth from heaven towards you. आपके लिए देखो, स्वर्ग से एक हाथ फैलाया हुआ है. Stretch forth your hands. वो आपकी ओर हाथ बढ़ाया हुआ है. You stretch forth your hand. आपकी हाथ को आप स्वर्ग की ओर बढ़ाए. Let him take hold. Take वो hold of your आपके hand. हाथ को पकड़ लेने दे. He will lead you. He will guide you. वो आपको चलाएगा, वो आपको अगुवाई करेगा, He will never forsake you. वो आपको कभी त्यागेगा He नहीं, will never let go of your hand. और वो आपके हाथ को कभी छूटने नहीं देगा. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. God undertook for our third day meeting, for which let's praise God. परमेश्वर हमारे तीसरे दिन सभा का बोझ उठाया हो, परमेश्वर को धन्यवाद करे. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. God undertook for our songs and testimonies, for which let's praise God. प्रभु ने हमारे गीत की सेवा गवाही को आशीष किया, स्तुति करे. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. For all the words which were spoken tonight, let's praise God. आज जो सारे वचनों से प्रभु ने हमसे बात किया, उन सारे वचनों के लिए स्तुति करे. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Our life must become song, for which let's praise God. हमारा जीवन एक गीत बन जाना चाहिए, इसकी स्तुति करेंगे. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. praise the Lord. Very soon we are going to sing songs of Zion in the coming kingdom, in that throne of glory, for which let's praise God. बहुत ही शीघ्र महिमा के सिंहासन में हम लोग परमेश्वर के राज में एक सियोन का गीत को गाने जा रहे हैं, इसलिए हम उसका स्तुति करेंगे. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Giving all honor and glory to God, let's praise God. सारे आदर महिमा प्रभु को देते हुए स्तुति करें. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. स्वर्गीय बाप, हम तेरी स्तुति तारीफ करते हैं प्रभु जी, तेरे महान प्रेम और दया के लिए. हमारे ऊपर अपनी महान दया दिखाकर, तरस दिखाकर प्यारे प्रभु जी, तूने हमारे सम्मेलन के तीसरे दिन की शाम की मीटिंग का भी खुदा तूने बोझ उठाया. पहले दिन की मीटिंग को तूने आशीष किया, दूसरे दिन की मीटिंग को उससे बढ़कर आशीष किया, और आज भी प्रभु जी तूने अपने लोगों के साथ उनकी जरूरत के अनुसार अपना वचन स्वर्ग से भेजा अपने दास के द्वारा. उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी. इंसान जो मिट्टी से बनाया गया था खुदा, उसको सबसे ऊंची जगह में खुदा जो तूने अपने उनके लिए तैयार की है खुदा, उसको कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं प्यारे प्रभु जी, उसके बारे में तूने अपने वचन देकर आज हमें सिखाया है. इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. इंसान जो मिट्टी से बनाया गया है, वो मिट्टी की चीजों के बारे में, दुनियावी चीजों के बारे में सोच में रहता है और उसी के पीछे भागता है, दौड़ता है, लेकिन उसका असली मकसद जो परमेश्वर ने उसके बारे में लिया है उसको भूल चुका है प्रभु जी. लेकिन आज तूने प्रभु जी अपने वचन के से हमें सिखाया है खुदा, तो पतवंतों में हमें ले जाना चाहता है खुदा, मिट्टी में से उठाकर खुदा सबसे ऊंचे स्थान में खुदा, वो जगह जो तू हमारे लिए तैयार करने के लिए गया है, वो नया यरूशलेम है, यहाँ पिता का निवास है, पुत्र का निवास है प्रभु जी. उस जगह को देने के लिए खुदा तूने गिरे हुए इंसान को दोबारा अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा खुदा उस जगह में पहुंचाता है. इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं. इसलिए खुदा कोई भी इंसान पाप में जीवन नहीं बताना है, पाप ही है खुदा जो हमें प्रभु जी मिट्टी के समान बना देता है प्यारे खुदा. लेकिन हमें पाप से छुटकारा देने के लिए तूने कलवरी क्रूस के ऊपर प्रभु जी अपने जीवन को बलिदान किया, और जो लोग तेरे उस महान कुर्बानी को स्वीकार करते हैं, अपने पापों को तेरे सामने मान लेते हैं प्यारे प्रभु जी, तो उनके ऊपर दया दिखाकर उनको क्षमा करते हैं प्रभु जी, और तेरी व्यवस्था को मानकर जो पानी का बपतिस्मा लेते हैं, पवित्र आत्मा को पाते हैं, संतों की संगति में बने रहते हैं प्यारे प्रभु जी, और पाप के ऊपर, संसार के ऊपर, शरीर के ऊपर, दुनिया के अभिलाषा के ऊपर जय प्राप्त करते हैं प्रभु जी. वो सिय्योन में तेरे साथ एक नया गीत गाएंगे, यरूशलेम में खुदा हम तेरे साथ वो आनंद मनाएंगे प्यारे प्रभु जी. वो दिन बहुत नजदीक है प्रभु. इसलिए खुदा तूने जो हमें कन्वेंशन जो सम्मेलन दिया है प्रभु जी, ताकि सम्मेलन के द्वारा
तेरी सलाह को सुनकर प्रभु जी जो भी हमारे जीवन में पाए जाने वाली कमी घटी कमजोरी है उन सब के ऊपर हम जय पाए, पवित्रता की तरफ हम बढ़ते हुए खुदा जैसे तू पवित्र है, जैसे तू हलीम है प्रभु जी, आज्ञाकारी है प्यारे खुदा, वफादार है प्यारे प्रभु, वैसे हम भी इन तमाम अच्छे स्वभाव में बढ़ते हुए खुदा एक सिद्ध और संपूर्ण इंसान बनकर प्रभु जी तेरे आगमन में हम दिखाई देने के लायक बन जाए। तेरा आगमन बहुत निकट है प्रभु, उस दिन के लिए हम सब लोगों को प्रभु जी तैयार करना। आज लाए हुए हमारे बेशकीमत प्रभु तेरी बेशकीमत आत्माओं के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। तो एक बड़े उद्देश्य के साथ उनको तेरे कदमों में आज रात लेकर आया और तेरी अच्छी सलाह को प्रभु जी तूने उनको प्रकट किया है। कोई भी अपने दिलों को सख्त नहीं करना है प्रभु जी। तेरा वचन जो आग की मानद है, हथौड़े की मानद है प्रभु जी, और उनके हृदयों में वो वचन बोया गया है खुदावंद, और प्रभु जी 100 गुना 60 गुना 30 गुना फल उनके जीवन में रहना चाहिए प्रभु जी, और सब लोग तेरे आगमन की जीवित आशा में बढ़ते हुए दिखाई देना चाहिए प्रभु जी। कल की मीटिंग को भी आशीष करना और हमें दिए अच्छा मौसम के लिए भी हम तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी। आए हुए सभी लोगों को तूने आशीष किया है, अभी अपने घरों को वापस जाएंगे, साथ रहना, पंखों के नीचे छिपा कर जाना, तेरा ही नाम महिमा हो, बाकी समय हमारे साथ हो। रात भर भी हमें प्रार्थना का आत्मा देना प्रभु जी। कल का आखिरी मीटिंग जो है सम्मेलन की, उसको भी प्रभु तो अपने हाथ में लेके चलाना, तेरे दास को अभिषेक करना खुदा, लबक्का रामानिया शरातिला प्रभु साहब, इस कन्वेंशन का इज्जत जलाल महिमा तू ही लेना चाहिए खुदा। हम मट्टी और खाक हैं प्रभु, तेरे बिना हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु। अपने आप को हलीम करते हुए तेरे हाथ में सौंप देते हैं खुदा। तू ही हमें चला, अगुवाई कर और पवित्र बना और तेरी महिमा में हमें ले जा प्रभु जी। ये बेनती यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ उसके आगमन तक होती रहे। उन हालेलुया சொல்லுங்கள், 3 हालेलुया बोलिए। हालेलुया।